Uh, so the assignment, only some 35 students have given their evaluation. Uh, so remaining also they have to provide or submit their assignments because the last date is already over. I can see only 35 submissions. So please complete the assignment number 1 as soon as possible so that we can go for the assignment number 2. So in this way, you are going to get a problem statement, and depending on the topics, whichever you have learned, you have to submit the assignments by properly converting into a solution. So आपको C# में जो भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उसको बेस लेके आपको कोडिंग इंप्लीमेंट करना है and according in your own terms. Okay, so you can refer internet or you can refer books so that to create your own implementation, and accordingly you can submit that in this LMS. So we have gone through the static members and access specifiers, then virtual and overriding, sealed methods, abstract methods. All these things we have exclusively dealt with in previous lab session. So all they are coming under the inheritance concept. I think you must be trying it out with your own examples, because आप जब तक प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो क्लैरिटी नहीं आएगा प्रोग्रामिंग में. So you need to practice before so that you can go for a big project. Okay. So any doubts left from the previous session to anyone? Any doubts or any difficulties that were occurring to anyone while doing their code? Okay. शायद आप प्रैक्टिस नहीं किए होंगे. तो प्रैक्टिस करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि बहुत सारे एरर्स आपको आएगा, बहुत सारे इश्यूज आपको फेस करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज समवट कंफ्यूजिंग एट फर्स्ट, बट सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपको प्रॉपरली समझ में आ गए तो इट इज very easy to understand, because it is irrespective of the language, irrespective of the programming language. Like आप Java में कर रहे होंगे, C# में कर रहे होंगे, VB.NET में कर रहे होंगे. So the concepts are actually coming from the OOPS concepts. Okay, so they are all similar in the fundamentals. Only difference is either the keywords may be somewhat different in each language. जैसे हमने कल डिस्कस किया था, sealed को हम Java में final करके use करते हैं. So in that way the terms can be somewhat different. Otherwise, every fundamental is same when you study the OOPS. ठीक है. So कल के इसमें अगर आपको कोई doubts नहीं है तो आगे बढ़ते हैं. So today sir might have completed the interfaces completely, because ये छोटा सा ही topic है, ये बड़ा नहीं रहता इसमें. And as per your understanding, why interfaces need to be implemented? Can anyone give the answers? इंटरफेस की रिक्वायरमेंट कहाँ पे आती है? जब अपने पास इनहेरिटेंस भी है. ठीक है, हमने ये सब हमने कल के सेशन में हमने चेक किया था, थियोरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकल. हमने इनहेरिटेंस भी चेक किया, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी चेक कर लिया हमने, ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग, एवरीथिंग वी हैव डील किया. देन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरफेसेस? ये सबसे बाहर है कि इंटरफेसेस. इसका जस्ट नॉर्मल डिस्कशन में आप बता सकते हैं, टेक्निकल टर्म्स में नहीं है तो नॉर्मल, क्योंकि कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना काफी इंपॉर्टेंट. अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो टर्म्स आर लाइक आप उसको कोई भी नाम से बुलाओ तो द थिंग विल बी सेम.
सो उसको इंटरफेस बोलेगा, दूसरे लैंग्वेज में कुछ और नाम से बुलाएंगे शायद, लेकिन जनरली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरफेस ही बोलते हैं। ओके, सो वेयर इट कम्स इनटू पिक्चर, ये सर ने बताया होगा ना एग्जांपल देके। To achieve multiple inheritance, use interface. Multiple inheritance. Only that is the reason? Okay, that is actually one of the answer. वो भी एक आंसर है, बट ये आप टेक्निकल टर्म्स में बता रहे हैं। ठीक है, मैं नॉर्मल अपना रियल वर्ल्ड के सिनेरियो में मैं पूछ रहा हूँ कि ये जैसे इनहेरिटेंस, मैं इनहेरिटेंस को अगर रियल वर्ल्ड सिनेरियो में बताऊंगा, you deserve the properties of or assets और जो भी घर हो सकता है, कार हो सकता है, ठीक है, you deserve those assets in your inheritance और in your hierarchy, जो भी आप डिसेंडेंसी में आ जाता है, क्योंकि आप नेचुरली आपके फादर के पास कार है या घर है आपके घर, तो नेचुरली इफ यू आर द ओनली सन दैट विल बी कमिंग टू यू, सो दैट इज इन जनरल टर्म्स व्हाट वी कैन से एज एन इनहेरिटेंस, इजंट इट? ये तो अंडरस्टैंड करने के लिए भी काफी इजी है। ऐसा नहीं है कि आपको खुद का घर है आप किसी और को दे देंगे, ऐसा नॉर्मली नहीं होता, क्योंकि एक फैमिली का एसेट्स, एक फैमिली का जो भी प्रॉपर्टीज, सो ऑल दे विल बी गोइंग टू देयर डिसेंडेंट्स ओनली। मल्टीपल है तो उसको डिवाइड करेंगे, अगर सिंगल है तो उसको डायरेक्टली इनहेरिट करेंगे, इजंट इट? डू यू एग्री विथ मी और नॉट? किसी को उसमें कोई डाउट है कि नेचुरल फिनोमेना, हम जो रियल वर्ल्ड के सिनेरियो हम अगर बात करते हैं तो डू यू एग्री? No, sir. नो आंसर्स? अच्छा, आपको समझ में नहीं आया कि इनहेरिटेंस, या इसमें कुछ डाउट है? No, Okay, I think nobody will be having any kind of doubts in the inheritance if we see in the real world. नेचुरल वर्ल्ड में क्या होता है कि जो भी आपका घर का प्रॉपर्टी है डिसेंडेंट्स को जाएगा, आपके बच्चों को, उनके बच्चों को, उनके बच्चों को, जब तक वो है तो तब तक जाता है। सो दैट इज व्हाट वी जनरली कॉल एज इनहेरिटेंस। ठीक है, अब वही है और कुछ नहीं है, इनहेरिटेंस मतलब वही है। सिमिलरली पेरेंट क्लास के जो अंदर हमने इम्प्लीमेंट किया है उसको अगर डेराइव्ड क्लास में आपको एक्सेस करना है, देन वी अगेन टेक द सेम कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड के बेसिस में ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पिलर्स बनाया है। रियल वर्ल्ड के सिनेरियो से ही वो उन्होंने मॉडलिंग किया है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने बनाया है। सो दैट्स व्हाई दीस टर्म्स पैरेलली यू कैन रिलेट विथ योर फिजिकल वर्ल्ड आल्सो। जो भी अपना फिजिकल वर्ल्ड है उसके साथ भी आप रिलेट करके देख सकते हो। ठीक है, अब ये ओवरराइड करना, अब 1-to-1 करने के लिए तो थियोरेटिकल सेशन भी कम पड़ जाएगा। ये रियल वर्ल्ड में कैसा होता है, ये रियल वर्ल्ड में कैसा होता है, उसका भी सारे एग्जांपल दे सकते हैं, बट वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। हर चीज पॉसिबल है, ठीक है, हर चीज आप एग्जांपल के साथ रिलेट कर सकते हैं। उसके लिए थ्योरी क्लासेस कम पड़ जाएंगे, कम से कम 4-5 क्लासेस लग जाएंगे उसमें, बट अल्टीमेटली इफ यू नो दिस टर्म इन द रियल वर्ल्ड, naturally you can apply this into the programming world also. अब बात करते हैं इंटरफेसेस की। वैसे ही बताओ अभी इंटरफेसेस का रियल वर्ल्ड सिनेरियो में क्या यूज है? प्रोग्रामिंग तो हम कर ही लेंगे, प्रोग्रामिंग का इम्प्लीमेंटेशन हम चेक कर ही लेंगे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरफेसेस इन रियल वर्ल्ड? जो भी आप डिस्कस कर सकते हैं, जस्ट आई एम आस्किंग, जस्ट आपका कितना अंडरस्टैंड हुआ करके मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपना खुद के एग्जांपल्स दे सकते हैं या प्रोग्रामेटिक एग्जांपल्स दे सकते हैं, सो दैट टू गेट द क्लैरिटी। इससे क्या होता है कि आपको क्लैरिटी बढ़ेगा, जब क्लैरिटी बढ़ेगा तो थिंग्स विल बी मोर इजियर फॉर यू। कोई भी नहीं? Sir, if we consider vehicle class as a interface and all the remaining whatever vehicles mean, car, truck, so we can put a compulsion that they should have something like engine, tires, seats. Right, right.
So yes, we have taken one term which is very essential. And then what is the difference between the interfaces and abstract methods? We cannot make object of that interface. In the interface, right? We cannot make an object of the interface, but वो actually उसका difference नहीं है. And theoretically मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें क्या difference है? Actually implementation ये भी कर सकते हैं हम, ये भी कर सकते हैं, ठीक है? अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड में जैसे आपने बोला कि हर एक व्हीकल का इंजन होना चाहिए, ठीक है? अब हर एक व्हीकल का इंजन तो हम बेस क्लास में तो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि इंजन का कैपेसिटी अलग अलग होगा कि कोई 1000 ये हार्स पावर एचपी का होगा, एंड कोई होगा 800, जैसे मारुति का है तो 800 का आएगा एचपी हार्स पावर, एंड कोई दूसरा गाड़ी है तो नियरली 2000 एचपी का भी आ सकता है ना? तो ऐसा क्या डिफरेंस है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में जो नहीं कर सकते वो इसके थ्रू कर सकते हैं? ऐसा क्या डिफरेंस है, कोई बता सकते हैं? Sir, we can inherit multiple interfaces, but we cannot inherit multiple abstract class. We cannot inherit multiple abstract classes. Okay, that is also one of the thing. बट मैं एक्चुअली इसका जो पिन पॉइंटेड एक आंसर के लिए मैं वेट कर रहा हूँ. कोई दे सकता है कि ऐसा आंसर जो एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्वेश्चन इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स में जो नहीं कर सकते वो क्या है, इसमें कर सकते हैं? Sir, multiple inheritance is achieved by abstract class and which is not achieved in interface. नो, आप उल्टा बता रहे हैं. मल्टीपल इनहेरिटेंस Is achieved by interface. Yes. इंटरफेस वो हाँ इसमें नहीं है. हाँ. वो सेम ही है, अभी जो इसके पहले के स्टूडेंट ने बताया वो भी सेम है आंसर. और पिन पॉइंटेडली कोई बता सकते थे? सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं ओके, और इंटरफेस इंटरफेसेस में नहीं कर सकते, ठीक है, हाँ. दैट इज आल्सो फाइन. बट वो Abstract आपका class यूसेज बता रहा है, कैसे इसको यूज करना है. मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको क्यों यूज करना चाहिए. इसको यूज कर सकते हैं तो वो कहीं तो भी कम पड़ रहा होगा, इसलिए उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लेके आया है ना. वो कौन सा पॉइंट है वो? सर आई थिंक इंटरफेस इज रूल सेटर. एब्स्ट्रैक्ट मेथड में हम चेंजेस कर सकते हैं, इंटरफेस में नो चेंज. हाँ, नियर अबाउट द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है. लेट मी एक्सप्लेन. देखो, ये इंटरफेसेस क्या रहते हैं? इंटरफेसेस आर लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट्स मींस एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स में हमने कल एक एग्जांपल में चेक किया था. कल के एग्जांपल में क्या किया था हमने? वर्चुअल बनाया था ना? वो ये इसमें नहीं था शायद. ओके, एक वर्चुअल बनाया था और नीचे में बेस क्लास का जो मेथड है इनहेरिटेड क्लास में हम ले रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. बट वो ओवरराइड करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट दैट विल नॉट मेक यू ए कंपल्सरी थिंग. दैट विल नॉट मेक यू ए कंपल्सरी थिंग. दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर आप मैंडेटरली आप मत बता नहीं सकते हैं कि इसको करना ही पड़ेगा, उसको बिना इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते. ऐसा हम नहीं कर सकते. एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या है कि इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं. ओके, सो but these are mandatory. This becomes mandatory. So that means interfaces you cannot escape from them. You cannot escape from them. And one more ये main चीज हो गया. दूसरी पॉइंट क्या है कि आप हर इम्प्लीमेंटेशन इनहेरिटेंस के थ्रू आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. हर चीज आपका इम्प्लीमेंटेशन आपका इनहेरिटेंस के थ्रू आप इम्प्लीमेंट करना भी चाहोगे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो आपको फिजिबिलिटी नहीं बनता. आपको जहाँ जहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक क्लास ले रहा हूँ, सपोज व्हीकल क्लास करके ही ले रहा हूँ, ठीक है. अब व्हीकल क्लास के अंदर सपोज फॉर एग्जांपल व्हीकल क्लास इज माय बेस क्लास. बेस क्लास बोलो, जावा में सुपर क्लास बोलते हैं, ये टर्म्स आपका इंटर रिलेटेड है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए. ठीक है, बेस क्लास बोलो, सुपर क्लास बोलो, ठीक है, और पेरेंट क्लास बोलो, ये सब एक ही वर्ड है.
इसका अलग अलग टर्म्स दिया है, बट वो अल्टीमेटली सी शार्प में जनरली बेस क्लास बोलते हैं, डॉट नेट में, जावा में सुपर क्लास बोलते हैं, ठीक है। सो द टर्म्स कैन बी डिफरेंट बट कॉन्सेप्ट इज सेम। एंड इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम लगाना है, ओके। अब ये म्यूजिक सिस्टम, ये आपको इजीली समझाने के लिए बता रहा है, कॉन्सेप्ट समझेगा यहाँ पे, बाकी तो प्रोग्रामिंग आप डेवलप कर सकते हैं। अब म्यूजिक सिस्टम हर एक व्हीकल में it will not be available in all vehicles, ठीक है। तो ये आपका बेस क्लास है। अब ये बेस क्लास के अंदर आप अगर म्यूजिक सिस्टम डालेंगे तो छोटे छोटे गाड़ी होंगी कि बाय डिफॉल्ट उसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं रहता होगा, या बाय डिफॉल्ट एसी नहीं रहता होगा, या बाय डिफॉल्ट एयर बैग नहीं रहता होगा, ठीक है, या बाय डिफॉल्ट डिस्क ब्रेक्स नहीं रहता होगा। ऐसा बहुत सारी चीजें हैं कि वो डिपेंड करता है कि डिराइव्ड क्लासेस, दैट दे गो इनटू द डिराइव्ड क्लासेस। अब वो डिराइव्ड क्लास के ऊपर है। अब डिराइव्ड क्लास में क्या हो सकता है कि ए से आप बी तक जा सकते हैं, बी से सी सकते, सी टू डी ई, ये ऐसा आप डिराइव्ड क्लास बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसको कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो सारे के सारे व्हीकल्स में आपको देना पड़ेगा, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अगर यहाँ पे देंगे तो ये सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ पे देंगे तो नीचे वाले सबको अवेलेबल होंगे। तो ये ऐसा कोई एक मॉडल है, इसमें 2 वर्जन है, ठीक है। सो इसमें जैसे मान लो ई का एक एक मॉडल निकला है, इसमें 5 वर्जन, और जो आप बोल सकते हैं सो टॉप टू हायर, लोअर एंड टू हायर एंड, ठीक है। एंड जनरली क्या होता है कि ई में एक मॉडल है, सी में एक मॉडल है, हर एक मॉडल में 5 या 6 वर्जन आ रहा है, ठीक है। हर एक वर्जन में क्या है कि लोअर एंड में आपको नहीं देना है बट हायर एंड में आपको देना है। अब ये एक्चुअली वे के लिए, अब वे के लिए तो आप बोलेंगे कि मैं ए से इनहेरिट करूंगा। अब ए से इनहेरिट करूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट आप नहीं दे सकते, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दे सकते, बिकॉज यू आर सेग्रीगेटिंग दैट फंक्शनैलिटी इनटू डिफरेंट फॉर्मेट। सिर्फ हर एक डिराइव्ड क्लासेस में, डिराइव्ड क्लासेस मतलब एक कंपनी है, कंपनी के अंदर एक डीजल वाला, इसमें मान लो डीजल एंड पेट्रोल करके वर्जन आ रहा है, ठीक है। अब ये जाने के बाद मे बी सम डिफरेंट फॉर्मेट, आप इसमें कुछ और एडवांस फीचर्स आप डाल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा आपका डिराइव्ड क्लासेस बनता जा रहा है। सो बी से जो निकला हुआ है सी डी ई एफ में जाएगा, एंड सो अब पॉइंट क्या है कि आपको इसको भी कंप्लाई करना पड़ेगा और ये भी देना पड़ेगा सेलेक्टिवली और ये भी देना पड़ेगा सेलेक्टिवली इन ऑल द वर्जन्स, है ना। सो ई में अगर 5 वर्जन है, स्टार्टिंग के 1 2 में अगर ये नहीं रहेगा, लोअर एंड में नहीं रहेगा, लेकिन हायर एंड में आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये सब सिमिलरली एफ के 6 वर्जन है, एफ के 6 वर्जन में लोअर एंड के वर्जन में नहीं देंगे, लेकिन हायर एंड के वर्जन में देना पड़ेगा। ये ऐसे डिपेंडेंसीज आपको आ जाएगा, तो फिर वो क्लैरिटी नहीं रहता कि इसको इनहेरिटेंस के थ्रू कैसे अचीव करें, ठीक है। एंड मोर ओवर अगर आप एक्स्ट्रा क्लासेस बनाओगे, तो आप अगर बोलते हो चलो ठीक है मैं बेस क्लास में एक्स्ट्रा क्लास बना दूंगा, अब वो डिपेंड करता है कि जिसको चाहिए ये को अगर चाहिए तो वो एक्स्ट्रा क्लास को ओवर करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा। बट यहाँ पे हम मैंडेटरी नहीं कर सकते, अगर वो प्रोग्रामर भूल जाते हैं या स्किप करना चाहते हैं, देन ऑल्सो इट इज फाइन। बट हम कंप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं, सेलेक्टिवली देना भी है और कंपल्सरीली भी देना है, then in those cases the abstract methods will not be of any use, ठीक है। तो ये एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, इंटरफेसेस को हम मैंडेटरी, एंड वन मोर थिंग इन अनदर कॉन्टेक्स्ट आई वांट टू एक्सप्लेन। आपके जो घर के जो पावर आउटलेट्स रहते हैं, ठीक है, अब पावर आउटलेट से कॉमन है कि 3 पिन प्लग रहता है या 2 पिन प्लग्स रहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को रन कर सकते हैं। उसमें आप फ्रिज चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं, टीवी चला सकते हैं, फैन चला सकते हैं, है ना, ड्रायर चला सकते हैं,
मे बी क्लॉक चला सकते हैं, सो गीजर चला सकते हैं, and you can simply run any kind of equipment by simply putting into this common interface. So that's why it is called as an interface. An interface. इसको अल्टीमेटली इससे कोई लेना देना नहीं, वो टाइप फ्रिज है क्या तभी मैं चलाऊंगा, अगर वो एसी है क्या तभी मैं चला सकता हूँ, वो ड्रायर है क्या तभी मैं चला, ऐसा कुछ नहीं है. दैट मीन्स it do not have any attachment with the type of the class. अगर ये क्लास के टाइप्स है, ये आपका इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को इसमें अगर पिन करेंगे तो चलेगा ही चलेगा. So in that way the interfaces are loosely coupled. Loosely coupled मतलब अगर फ्रिज के लिए आपको सेपरेट 4 वाला पिन मिलता है क्या, नहीं मिलेगा. एसी के लिए 5 वाला पिन मिलता है क्या, नहीं मिलेगा. टीवी के लिए सिंगल वाला पिन मिलता है क्या, नहीं मिलेगा. ये पावर आउटलेट तो सेम ही है आपके घर से जो भी जा रहा है, और इसमें आपको चलाना तो सब कुछ, इसमें ग्राइंडर मिक्सचर आपको जो जो चलाना है ना, वो सब चला सकते हैं with the common interface. So that's why it is called as an interface. That's why it is called as an interface. कोई डाउट अभी तक? फंडामेंटली मतलब थियोरेटिकली किसी को कुछ पूछना है? Okay, no doubts. Then if we are saying that this is a particular class type, this is a class, this is a class, then accordingly these particular ये जो इनहेरिटेंस का फंडामेंटल वो सब आ जाएगा. और जितना ज्यादा आप इनहेरिटेंस में आप चीजों को बाइंड करेंगे उतना ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स भी होता जाएगा, क्योंकि आपको कौन सा चीज एक्सपोज करना है, कौन सा चीज एक्सपोज नहीं करना है. सो आप सबको देखते देखते हुए आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ता है. एंड अल्टीमेटली व्हाट इफ यू वांट इज ए जस्ट ए कॉन्ट्रैक्ट. अगर मुझे ये क्लास चलाना है तो मुझे ये मैंडेट इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. अगर आपको बस इतना ही फंडामेंटल रूल अप्लाई करना है, then interfaces are the best because they do not have any attachment of the data type. That means ये क्लास है, ये क्लास है, वो चेक नहीं करेगा. सिंपली आपका इंटरफेस अलग डेटा टाइप बनेगा और वो इंटरफेस आप कोई भी क्लास को अटैच कर सकते हैं. लाइक इन दिस केस हम फ्रिज के साथ भी अटैच कर रहे हैं, इसी के साथ भी अटैच कर रहे हैं, गीजर के साथ भी अटैच कर रहे हैं. सो सिमिलरली द इंटरफेसेस कैन बी simply plugged into any kind of class or any kind of data type because they are loosely coupled. And more advantage is they are bind to work, है ना. So they are bind to work means आपको वो कंपलसरी हो जाता है. अगर जैसे आपने इंटरफेस इंप्लीमेंट किया then it is a mandatory thing, आपको करना ही पड़ेगा वो. Okay, so this is the concept of the interface theoretically. समझ में आया? रियल वर्ल्ड सिनेरियो के साथ मैंने एग्जांपल दिया. किसी को समझ में नहीं है ऐसा कुछ है तो आप स्टॉप कर सकते हैं, मैं और एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, I think everybody got the idea. Now let us move into the programming. अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, theoretically हमने जो जो डिस्कस करना है हमने कर लिया. So interfaces are loosely coupled, they are not a particular type, है ना, they are not a particular type. And abstract का इसका वही डिफरेंस है कि these are of a particular type and these do not have a particular type because आप इसमें ये भी चला सकते, ये भी चला सकते, ये भी चला सकते और ये भी चला सकते. ठीक है. एंड सबको अगर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, यू हैव टू कॉल इट, दैट मीन्स उसका मैंडेटरी चीज क्या है यहाँ पे, स्विच ऑन. यहाँ पे मैंडेटरी चीज क्या है, स्विच ऑन. जब तक आप इसको स्विच ऑन नहीं करोगे इसका जो आपका फंक्शनैलिटी इसमें नहीं आएगा. जब तक आप स्विच ऑन इज ए मेथड, ओके, सो वन मेथड इज देयर दैट इज कॉल्ड एज स्विच ऑन. जब तक आप ये इंटरफेस को अटैच करके, दैट मीन्स आपके पावर आउटलेट में प्लग हो सकता है, प्लग हो सकता है. पहले तो उसको अटैच तो करना पड़ेगा ना. अटैच करने के बाद जब तक आप स्विच ऑन नहीं करोगे, स्विच ऑन इज योर मेथड, जब तक आप स्विच ऑन नहीं करोगे ये मैंडेटरी है. ये मैंडेटरी है, मतलब मैंडेटरी क्या है, स्विच ऑन करना मैंडेटरी है, अटैच भी करना है, स्विच ऑन भी करना है. जब तक स्विच ऑन नहीं करेंगे इसमें तो ये वाला अप्लायंसेस फंक्शनल नहीं होंगे. गॉट द आइडिया?
ठीक है. Now let us see with some examples हम चेक करेंगे इंटरफेसेस का. I will remove the earlier ones. This is not now the I will take an interface, public interface. Suppose I will take one interface like I worker. Okay, so the naming convention is आपको .NET में जो भी इंटरफेस स्टार्ट करना है ना, it has to start with the I word. So दूसरे लैंग्वेजेस में ऐसा मैंडेटरी है, दूसरे लैंग्वेजेस में बनाते हैं तो सपोज ऐसा बनाते हैं वर्कर इंटरफेस, ऐसा भी आप ले सकते हैं. और in some languages only simple worker, ऐसा भी दे सकते हैं. नेमिंग इज अप टू यू, अप टू द प्रोग्रामर. बट .NET में क्या है कि आप डॉक्यूमेंटेशन में भी कर सकते हैं. इट हैज टू स्टार्ट विद आई, सो दैट ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है. जब आप जैसे आई टाइप करते हो ना, ये देखो आई टाइप करते हो तो जितने भी इंटरफेसेस है, आई ऐप डोमेन सेटअप, आई एसिंक रिजल्ट, आई क्लोनेबल, आई कंपैरेबल, आई कन्वर्टेबल, ऐसे .NET में बहुत सारे इंटरफेसेस है, वो सब आपकी लिस्टिंग में आ जाते हैं. सिमिलरली आपके कस्टम क्लास में अगर आपने कुछ इंटरफेस बनाए हैं तो इजीली एक्सेस करने के लिए अगर आप जैसे W करेंगे तो आपको फिर सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरफेसेस बहुत ज्यादा नहीं रहता क्लासेस में. अंदर 10 से 15 ज्यादा से ज्यादा मैंडेटरी आप रखेंगे, उससे ज्यादा क्या रखेंगे. बट क्लासेस ऐसा नहीं रहता, क्लासेस कैन बी इन हंड्रेड्स और 50s और 100s. सो दैट्स व्हाई ये नेमिंग कन्वेंशन इसीलिए है कि वो इजी पड़ता है. जैसे आप आई टाइप करेंगे यू कैन सेलेक्ट डायरेक्टली. इसीलिए .NET डॉक्यूमेंटेशन क्या बोलता है कि आई से स्टार्ट करना चाहिए. ठीक है, सो ये आप ऐसे दे दिया. ये नहीं है, अगर ऐसा नहीं किया तो चलेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता भी है. बट आप अगर कंपनी में काम कर रहे हो, आपका कोड अगर 10 या 15 लोग स्टडी करेंगे, देन दे विल बी गेटिंग कंफ्यूज्ड. ठीक है, तो इसीलिए आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. सो देन मैंडेटरी यू हैव टू गिव दिस आई वर्कर. सो दैट इज द ओनली रीजन. इससे अलावा कोई रीजन नहीं. अगर ये नहीं भी दिया तो वैसे ही काम करेगा, बिकॉज this is actually the keyword that is actually working. Okay, so जब तक आप इंटरफेस नहीं करोगे तो इंटरफेस जैसे काम नहीं करेगा. The naming is up to you, but only for facilitate to other programmers what you have created in your project. So these many interfaces are available. So वो generally क्या करेंगे, दूसरे कंपनी से जब माइग्रेट करके आपके कंपनी में आते हैं, so they will be simply searching with this I. So I जैसे करेंगे तो आपने अगर बनाया होगा तो आ जाना चाहिए. अगर आप आपने बनाया नहीं आ रहा, दैट मींस दैट इज द प्रॉब्लम विथ यू, आपने बना बराबर नहीं. सो दोज आर द नॉर्मल रूल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ है ना, तो वो करना पड़ेगा, तो आपको भी करना ही है. सो बट आई विल टेक हियर लाइक हाँ, एक और चीज है कि इसमें मैं पब्लिक स्ट्रिंग नेम ऐसा मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता, बिकॉज ये देखो यहाँ पे कैन नॉट कंटेन इंस्टेंस कीज. ये जैसा मैं मेंबर वेरिएबल्स को जैसे डिक्लेयर वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं कर सकता, सिमिलरली एक्सेस स्पेसिफायर्स को भी मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता. दे कैन नॉट बी फील्ड्स नहीं होना चाहिए, बट यू कैन क्रिएट द प्रॉपर्टीज. यू कैन क्रिएट द प्रॉपर्टीज. so you can create the properties, and you can have some methods also. You can have some methods also. हाँ, अब ये आंसर करो, इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा क्या यहाँ पे मुझे? यहाँ पे मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा क्या? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं डिराइव्ड क्लासेस में. इसमें चलता है ऐसा? No, यस. because Answer it is an interface. यस, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है सर. इंटरफेस है ना. जरूरत नहीं है, बट कर सकते क्यों? मीन्स जरूरत मीन्स नहीं. आज वो 8.0 वर्जन में कर सकते हैं. C# के 8.0 हाँ. इसमें कर सकते हैं. ओके,
डिपेंड्स ऑन द वर्जन एक्चुअली. ओके ओके, आई हैव टू क्रॉस चेक, बट जनरली क्या कर सकते हैं, इसमें आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. जनरली इसमें इम्प्लीमेंटेशन करना ही नहीं पड़ता, बिकॉज what it is saying that you need to implement this whenever you are attaching to this class. That means मैं ये बता रहा हूँ, आप जब भी ये इंटरफेस पे अटैच करोगे, फंक्शनैलिटी इसमें है ना, मतलब स्विच ऑन करो करके हम किसको बता रहे हैं, इंटरफेस के थ्रू कन्वे कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली इसमें आपका फंक्शनैलिटी रन होता है. तो आप यहाँ से नहीं बता सकते हो इसमें क्या करना चाहिए. मतलब इसके अंदर देखो, ये इसको पता ही नहीं है, ये आउटलेट में पता ही नहीं है कि इसमें फ्रिज का फॉर प्लग इसमें लगाने वाला है कि टीवी का लगाने वाला है. तो इसमें आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि ये ऐसे ही चलना चाहिए या इसका ऐसे ही चलना, इसमें 16 एम्पियर्स का चलना चाहिए, इसमें 10 एम्पियर्स का वोल्ट जाना चाहिए. ये डिसाइड नहीं करता, ये डिसाइड करता है. सो दैट्स व्हाई आपके जो इम्प्लीमेंटेड क्लास है ना, आपके जो इम्प्लीमेंटेड क्लास है ये है, सपोज आपका इम्प्लीमेंटेड क्लास मे बी द कंपनी. ठीक है. सो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तरीका क्या है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप कॉलन देंगे एंड यू हैव टू कॉल दिस वर्कर. ओके, एंड जैसे वर्कर देंगे तो ये ऑलरेडी कंप्लेन कर रहा है. ये क्या कंप्लेन कर रहा है, नेम इज नॉट इम्प्लीमेंटेड, डू वर्क इज नॉट इम्प्लीमेंटेड. मतलब जैसे ही हमने दिया ना, मैंडेटरी कर देता है कि ये दोनों का आपको इसमें कंपल्सरीली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. ये चेक कर रहा है, दोनों अवेलेबल नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट इज गिविंग दिस एरर. हमने अभी तक कुछ टाइप भी नहीं किया, जैसे हमने आई वर्कर दिया तो वो स्टार्ट हो जाता है चेकिंग करना. तो ये आई वर्कर, दिस इज द एक्चुअल interface. You can see that does not implement name, does not implement do work. Then what is the solution? You have to implement the name, so which is a string. Then आपका एक चला गया, यहाँ पे देखो एक चला गया, अब दूसरा बचा हुआ है do work. Now you have to implement that also, and उसको मैं करूँगा suppose public void do work. ठीक है. अब जैसे इसको करूँगा मैं, तो यहाँ पे वो एरर चला गया. नो इट इज सेटिस्फाइड, नाउ इट इज सेटिस्फाइड. आप इसके अंदर कुछ भी इंप्लीमेंट मत रखो, कुछ भी इंप्लीमेंट मत करो, बट स्टिल इट इज चेकिंग वेदर दैट रूल्स आर ओबेड और नॉट, बिकॉज इट इज मैंडेटरी. ये ऐसा इंप्लीमेंट करना मैंडेटरी है. इसके अंदर आप खाली भी रखोगे तो वो चलेगा, बिकॉज दैट इज अप टू द अप्लायंस, ठीक है. तो मैं यहाँ से तो स्विच ऑन करूंगा, लेकिन इसमें एक ऑटो शटडाउन मोड भी है, तो मैं ऑटो रिस्टार्ट भी कर सकता हूँ, ऑटो शटडाउन भी कर सकता हूँ. ये इसका पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी है. सो वो क्या करेगा, अपने हिसाब से वो स्टेटमेंट्स लिखेगा, अपने हिसाब से वो प्रोग्रामिंग करेगा, अपने हिसाब से वो बिहेवियर बनाएगा. तो इसमें हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम फिलहाल के लिए एग्जाम्पल के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन, ओके, द इंटरफेस इज इम्प्लीमेंटेड. ऐसा जस्ट अपने नॉलेज के लिए हम इसको कर रहे हैं. एंड व्हाट रिमेनिंग इज दिस, जस्ट यू नीड टू कॉल दिस कंपनी. ओके, कंपनी class is equal to new company, and then call the doer method. Call the doer method and actually यहाँ पे से निकाल लेंगे. ठीक है. तो you can run this. अब रन करने के बाद आपको after set this console dot read line or read, आपको मिल रहा है मैसेज, द इंटरफेस इज इम्प्लीमेंटेड. ओके. अब ये इंटरफेस इज इम्प्लीमेंटेड कौन बता रहा है, ये बता रहा है आपके प्रोग्राम के क्लास, which is actually instantiating this company object, which is indirectly supported by this iWorker. iWorker is only defining the things, तुमको क्या करना चाहिए, तुमको क्या नहीं करना चाहिए, बट जो भी करना है वो इम्प्लीमेंट ये करेगा. अब आप बोल सकते हैं कि नेम को तो हमने कॉल ही नहीं किया यहाँ पे, है ना. अब नेम को भी कॉल कर सकते हैं. Suppose with this name, okay, suppose example के लिए मैं कुछ name,
यहाँ पे मुझे नेम सेट करना पड़ेगा, सी डॉट नेम इज इक्वल टू, अब नेम में क्या देंगे, ये क्या नाम है, कंपनी नेम है ना, सपोज बिरला कंपनी, ओके, ऐसा कुछ तो भी दे दिया मैंने। नाउ यू कैन सी दिस आंसर विच इज कमिंग इन द रेस्पॉन्स, जो कि हम मैंडेटरी कर रहे हैं इंटरफेस के ऊपर, नेम भी स्पेसिफाई करो और वो मेथड डू वर्क भी स्पेसिफाई करो, दैट मींस वर्कर्स हैव टू डू देयर वर्क इन दिस कंपनी। ऐसा एक हमने एक बिहेवियर सेट किया, वर्कर्स हैव टू डू देयर वर्क। अब डू वर्क में हमने तो सिंपली आउटपुट चेक कर लिया है, लेकिन डू वर्क में आप एल्गोरिथम्स रन कर सकते हैं, आपको जो जो करना है, डेटाबेसेस को इंटरैक्ट कर सकते हैं, आपको जो भी करना है वो कर सकते हैं, बट दीज थिंग्स आर मैंडेटरी, आपको सेट करना ही पड़ेगा। अब इसको कॉल करना पड़ेगा, कॉल करने के बाद आपको ये बिहेवियर जैसे नॉर्मली आपको जो इंस्टेंस में मिलता है वैसे आपको इसमें भी मिल जाएगा। गॉट इट? एनी डाउट्स सो फार? किसी को कोई डाउट है ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, कोई डाउट है? No, अंडरस्टूड कंप्लीटली? ओके, सर यस। सर एक्चुअली मेरा ना ये आपने जो अभी प्रोग्राम किया ना वही रन कर रही थी, बट मेरा पिछला वाला प्रोग्राम रन हो रहा है, तो उसका सेटिंग क्या है? उसका सेटिंग आपको उसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, आपने एक नया पेज बनाया है, ठीक है, उसमें भी मेन एंट्री है और ये वाला पर्टिकुलर क्लास में भी मेन एंट्री है, तो सिंपली क्या करना, दूसरे जो होंगे ना उसको एक्सक्लूड कर दो, ये एक्सक्लूड करके आता है ना वो कर लो, फिर आपका ये वाला करंट वाला चलेगा, ठीक है। ओके सर। क्योंकि एक क्लास एक प्रोजेक्ट के अंदर एक ही मेन एंट्री पॉइंट रहता है, दैट इज दिस। सो मल्टीपल मेन एंट्री पॉइंट है तो वो प्रोजेक्ट प्रीवियस वाला रन करेगा, इसको लेगा ही नहीं तो जब तक एक्सक्लूड इसका कहाँ से सेट। करने के लिए दिखाओ? ये आपके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाइए, जो नया फाइल बनाया है उस पर राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद एक्सक्लूड फ्रॉम प्रोजेक्ट, और अदरवाइज क्या करना, सिंपली ये प्रीवियस कोड को कमेंट कर देना सिंपली, ठीक है। आप ऐसा एक रीजन ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज माय रीजन, रीजन माय सेशन 4, ठीक है, एंड इसका रीजन, यानी कि सिंपली कमेंट कर दो, रीजंस के बाद में चेक कर सकते हैं, इसको सिंपली कमेंट करो, रीजंस होता है वैसे, रीजन यस माय रीजन। हाँ, ये पूरा कोड है ना, आप इसमें कट कॉपी ये कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर लेना, पेस्ट करने के बाद फिर ये रीजन को ये रीजन को आप कंप्लीटली कमेंट कर सकते हैं, तो इसमें क्या होता है आपको क्लैरिटी आएगा, ये सेशन का ये कोड है, ये सेशन का ये कोड है, ठीक है। तो वैसा भी कर सकते हैं, या सिंपली कमेंट करो, अभी के लिए आपको फिर ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, सिंपली ये सब कोड एडिटर के थोड़ा ट्वीक्स है। एंड देन मल्टीपल इंटरफेसेस को कैसे इम्प्लीमेंट करना, मल्टीपल इंटरफेसेस मीन्स मुझे अभी मेरे पास है एक और इंटरफेस है विच इज कॉल्ड एज, कॉपी पेस्ट करना सो दैट टाइपिंग थोड़ा सेव करने के लिए, उसका नाम बताता हूँ, वर्कर भी है एंड आई विल टेक एवरी वर्कर एज अ पर्सन, है ना। अब इसमें हम बोलूंगा मैं स्ट्रिंग गेट नेम, हर एक पर्सन का नाम रहेगा, तो ये मेरा हो गया इंटरफेस सेकंड, ठीक है। अब मुझे इसको भी इंक्लूड करना है, इसको इंक्लूड करना है तो आई विल सिंपली सेट अ कॉमा हियर एंड आई विल टेक द सेकंड, देखो यहाँ पे आ रहे हैं इंटेंशंस में आई पर्सन, अभी तक मैंने कंपाइल भी नहीं किया, मैंने अभी कुछ कंपाइल एम्पलेशन कुछ नहीं, जैसे मैं टाइप करते जा रहा हूँ इट कैन डिटेक्ट एवरीथिंग, इट कैन डिटेक्ट एवरीथिंग। एंड ये मेरा जो दूसरा इंटरफेस है, ये जो पहला वाला इंटरफेस ये है एंड दूसरा वाला इंटरफेस ये है, और दोनों को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ये एरर इसीलिए आ रहा है कि भैया आपने गेट नेम को इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो वो वाला एरर दे रहा है वो, उसको भी अपने को करना पड़ेगा इन दिस पर्टिकुलर क्लास। एंड फॉर दैट आई विल create the method
ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग डेटा टाइप ही रहेगा। गेट नेम, ठीक है, गेट नेम इज द मेथड एंड गेट नेम हियर आई विल सिंपली रिटर्न, यहाँ से वो भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग पर्सन नेम, something like that we have taken person name. So simply what it is doing, it will simply revert with the information that you have provided. Okay, so अभी जैसे हमने implement किया यहाँ पे, okay, ये parameterized वाला है ना, तो ये parameterized वाला मुझे लेना पड़ेगा, person name से मैच होना चाहिए, तो ठीक है, ये अभी ये satisfy हो गया। Now to call this, I have to do the same thing. What is this? Get name, na? Get name. The name of the person is some Rajesh Sharma, something like that I have found. And ये return तो करेगा, return को तो print करना पड़ेगा ना। String person name is equal to this, and ये भी console dot write line कर लेंगे, console dot write line, simply print the worker name is person name, ठीक है। तो ये आपके कस्टम इम्प्लीमेंट, आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हो। अभी मैं आपको सिंपली डिस्प्ले करने के लिए, या तो आप इसी में ले सकते हो, पर दो वर्ड के अंदर ही आप वो पर्सन का नाम भी ले सकते हो, जैसा लेना है आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। अभी रन करके देखते हैं। रन करके देखने के बाद आपको दो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ये वाला है पहला वाला इंटरफेस से, और ये वाला आ रहा है सेकंड वाला इंटरफेस। गॉट इट? तो हमने ये दोनों इंटरफेसेस का इम्प्लीमेंटेशन चेक कर लिया। स्टार्टिंग वाले में डू वर्क हो रहा है एंड सेकंड वाले में गेट नेम हो रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट डिफरेंट इंटरफेसेस इन योर क्लास। अगर आपको क्लास इम्प्लीमेंट करना है, सपोज मेरे पास एक और क्लास है, यहाँ पे पब्लिक क्लास सैलरी या डिपार्टमेंट ले लेते हैं, फिलहाल के लिए कंपनी है ना तो डिपार्टमेंट ले लेते हैं। सो दिस इज अ पर्टिकुलर क्लास। अब ये क्लास को मुझे इनहेरिट करना है। अब इनहेरिट करना है तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे एक्चुअली पहले डिपार्टमेंट, सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिपार्टमेंट करके दे दूंगा। दैट मीन्स दिस कंपनी इज इनहेरिटेड फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट क्लास, implementing the two interfaces. क्लासेस को इनहेरिट करता है, इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करता है। इनहेरिटेंस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग द इनहेरिटेंस चेन हियर। दिस इज समथिंग डिफरेंट। इसमें इनहेरिटेंस का कोई फीचर है ही नहीं। फ्रिज है ठंडा करेगा, एसी है ठंडा करेगा, ये दोनों कॉमन है, बट टीवी डिस्प्ले करेगा, फैन एयर कूल करेगा, ड्रायर। So these are different implementations. So they do not have any kind of binding. So that's why inheritance सिर्फ department के लिए है, but implementation के लिए ये I worker I person interfaces है। So I worker I person inherit नहीं कर रहे, even though the syntax is same. Syntax आप simply ऐसे ही करोगे। तो कॉमा देके आप जितने भी कॉमा लगाएंगे सब इनहेरिटेंस का ये एक्चुअली अटैच करने का तरीका है, ये हम अटैच करते हैं। बट क्लास है तो आप माउस ओवर करेंगे तो आपको पता चलेगा दिस इज ए क्लास। क्लास है तो क्या ये इनहेरिटेंस में कंसीडर करेगा। अगर आप इंटरफेस है तो ये क्या करेगा, इम्प्लीमेंटेशन के लिए कंसीडर करेगा। जैसे वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए कर रहा है तो वो आपको क्या करेगा, ये मैंडेटरी का एरर दे देगा, मैंडेटरी का एरर देगा। वेयर एज इन दिस क्लास इट विल नॉट डू एनीथिंग मैंडेटरी। अगर आप डिपार्टमेंट के क्लास में, सपोज मैं एग्जांपल के लिए डिपार्टमेंट के क्लास में सेम मैं चीज यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे get department name, okay, so this is DEPT name। ऐसा मैंने एक
ठीक है। अब ये जब तक ये इसको so now it is fine. We have taken one method in the department that is called as get department name, and see here it will not comply. ये inherit कर रहा है department में, मतलब department को inherit कर रहा है, but nowhere it is saying to compulsorily implement this get department name. इसका virtual भी कर लो, ठीक है। ये देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी के जो क्लास का है ना इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ओवररेड कर रहे हो नहीं कर रहे हो। सो दैट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द एब्स्ट्रैक्ट एंड द इंटरफेसेस। सो एब्स्ट्रैक्ट्स आर नॉट मैंडेटरी, एब्स्ट्रैक्ट नहीं एक्चुअली इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, इनहेरिटेंस इज नॉट मैंडेटरी, एब्स्ट्रैक्ट भी टुक काइंड ऑफ इनहेरिटेंस फीचर है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट में कर रहे हो मतलब आपको इनहेरिट करना पड़ेगा। So that means here we have to understand inheritance is not mandatory, but interfaces are mandatory. So that's why we can see the example like this. So अभी तक कोई डाउट है किसी को कि कोड नहीं समझ में आया, किसी को कुछ पूछना है? स्लोली जाएंगे क्योंकि इंटरफेसेस में ज्यादा कुछ पढ़ाने के लिए है ही नहीं, दिखाने के लिए भी। ओके, एनी डाउट्स? Okay, I guess no doubts to anyone. Then हमने मल्टीपल इंटरफेसेस को भी चेक कर लिया, देन सारे के सारे मेंबर्स को भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ये भी हमने बता दिया। सपोज यू कैन क्रॉस चेक दैट, मैं अगर गेट नेम को निकाल देता हूँ, यहाँ पे कट कर देता हूँ, इंस्टेंटली इट विल गिव यू द कंपाइलेशन एरर, ये कंपाइल ही नहीं करने देगा। सी हियर मैं कंपाइल करना चाहता हूँ भी तो आगे नहीं बढ़ने देगा। सो these have to be mandatorily implemented. So जब तक आप ये कॉन्ट्रैक्ट को एग्री नहीं करेंगे, ओबे नहीं करेंगे, सो दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट, इंटरफेस इज ए कॉन्ट्रैक्ट, जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट को ओबे नहीं करेंगे, अबाइड नहीं करेंगे, तो वो प्रोग्राम को रन नहीं करने देगा। सो समटाइम्स इट इज वेरी वेरी यूजफुल। क्या होता है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि आप बहुत सारे क्लासेस बनाए हैं, इनहेरिटेंस भी अपने दिए हैं, देन समटाइम्स यू वांट टू कंप्लाई सम पार्ट्स ऑफ द कोड बाय द जूनियर प्रोग्रामर्स और बाय द इम्प्लीमेंटर्स, तो वो इनहेरिटेंस में आपको देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं रहता। सो एंड इनहेरिटेंस में क्या होता है कि आपका पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप आ जाता है। पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप मतलब आप देखा जाए तो वो उस टाइप का नहीं है, बट वो देना भी वो है, मतलब ऐसा कंफ्यूजन स्टेट में आ जाते हैं। सो देन इंटरफेसेस आर द कूलेस्ट थिंग टू इम्प्लीमेंट इन दोज मोमेंट्स। तो आप इंटरफेस पे आराम से, क्योंकि इसका टाइप चेक नहीं करता वो, आपको कोई आपको कोई पूरे क्लास को डिफाइन करके उसके सारे मेंबर्स को एक्सेस करके, है ना, ओनली टू इम्प्लीमेंट अ स्मॉल थिंग। What is the small thing here? It needs, it has to be, the equipments need some power supply. That's all. ये आपके जो क्लासेस हैं, ये क्लासेस को क्या चाहिए? पावर सप्लाई चाहिए। अभी पावर सप्लाई चाहिए तो आप उसको पावर सप्लाई करके आप एक बेस क्लास बनाएंगे क्या? नहीं, बिकॉज पावर सप्लाई इज समथिंग विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट। पावर सप्लाई का, उसका पावर जनरेशन का आउटपुट कितना आना चाहिए, है ना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट करंट क्या है, वो सब आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है सबके लिए। अल्टीमेटली योर क्लास रिक्वायर्स सम डिसेंट पावर इनपुट, दैट्स ऑल। उसका रिक्वायरमेंट उतना ही है। अब उसके लिए आप पूरा पावर प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट करके मैं इनहेरिट करूंगा, दैट इज अ फूलिश थिंग। सो दैट्स व्हाई इन दोस काइंड ऑफ सिनेरियोस इंटरफेसेस आर द कूलेस्ट थिंग। इंटरफेसेस ले लो, सिंपली आपको जो काम का चीज है बस वो ले लो और आप अपना काम करवा लो। इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, अदरवाइज वी कैन सी इन ए डिफरेंट वे आल्सो। अगर आपको दूसरे टाइप का एग्जांपल में अगर आपको देना है तो मैं वो भी सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा इजी भी पड़ता है अंडरस्टैंड करने के लिए। ये वाला एग्जांपल मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज ठीक है, मैं कॉपी करके रख लेता हूँ। This is what is called as multiple interface. Okay, and we will go here and see
I will just remove the earlier implementations. अब मैं यहाँ पे दो इंटरफेसेस लूंगा. फर्स्ट वन इज क्लास भी निकाल देता हूँ. फर्स्ट वन इज आई 1 or what we can take as suppose चलो मैं तो ये एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ. अब इंटरफेस के बाद में आएंगे. पब्लिक क्लास और ये वाला सिंपल एग्जांपल है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बाय एवरीवन. पब्लिक क्लास इवन, ठीक है. अब इसमें some members you need to add. So same here also you need to add some members. अब वो क्या members है वो हम उसके अंदर तक नहीं जाएंगे. आपको पता है odd मतलब क्या है, even मतलब क्या है, आपको पता है, ठीक है. So that's why I'm not implementing those. Now when you come to this class program, ये प्रोग्राम आपका odd भी inherit करना पड़ेगा, even भी inherit करना पड़ेगा. अगर ऐसा कुछ है तो क्या हो गया, मल्टीपल बेस क्लासेस. हाँ, ये ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. ये क्या होता है कि ये मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए हो जाता है, ठीक है. दैट्स व्हाई इट इज गिविंग द एरर मल्टीपल बेस क्लासेस. अब प्रॉब्लम एक चीज है, लेकिन आपके प्रोग्राम के लिए ये दोनों ही चाहिए, क्योंकि आपका नंबर्स क्या हो सकता है कि सपोज इफ यू आर टेकिंग सम इंटीजर आई, सो दिस कैन बी समटाइम्स एन ऑड नंबर एंड समटाइम्स एन इवन नंबर. अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब ये दोनों को तो आप इनहेरिट नहीं करोगे, दोनों को अलग अलग से इनहेरिट नहीं करोगे. बट इसमें क्या प्रॉब्लम है कि आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो. सपोज अगर आपको ये ऐसा देना है, ये वैलिड है, ये वैलिड है, बट ये प्रॉब्लम देता है इवन कैन नॉट बी एन ऑड, क्योंकि ऑड का नंबर अलग रहते हैं, इवन का नंबर अलग रहते हैं. जब आप अगर ऐसा कर लिया देन इट इज कंप्लीटली एन इंटीजर इम्प्लीमेंटेशन. इसमें कोई डिफरेंस खत्म हो जाता है फिर, समझ रहे हैं ना. सो ये इवन को आप अगर अपने इनहेरिट भी कर लिया, यहाँ पे दोनों ही आ जाएंगे, बट देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेकिंग टू डिफरेंट क्लासेस हियर लाइक दिस. अभी समझ में आ गया कॉन्सेप्ट. सो दैट्स व्हाई समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल टू इनहेरिट एवरीथिंग. ये ऑड भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैं इवन भी ले सकता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन. सो हियर द ट्रिक इज टू गो फॉर द इंटरफेस. अब इंटरफेस से तो हम क्या करेंगे, इसको आई ऑड करेंगे एंड अगेन दिस इज आल्सो एन इंटरफेस. अब इसको क्या करेंगे, आई इवन करेंगे, है ना. अब ये इंटरफेस है तो हम यहाँ पे इसको भी कॉल कर सकते हैं एंड इसको भी कॉल कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम. अब इसमें नंबर्स नहीं है करके ये कंप्लेन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट कंप्लेनिंग. सपोज इफ आई क्रिएट ए नंबर void check odd. check odd में क्या करेंगे, if it is divisible, इसमें implementation यहाँ पे नहीं करेंगे. check odd यहाँ पे करना पड़ेगा. तो अभी देखो ये कंप्लेंट करना है, करने के लिए आप देखो ये मोसोर करेंगे ना, ऐसा एक और शॉर्टकट है. ये देखो दिस इज द सेटिंग. ये आपको बता रहा है कि चेक ऑड आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा एंड चेक ऑड के अंदर अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो नॉट इम्प्लीमेंटेड का एक्सेप्शन आपको थ्रो करना है. एटलीस्ट इतना तो करो करके आपको सजेशन दे रहा है, ठीक है. एंड यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड क्विकली नहीं आ रहा हो आता हूँ वैसे.
ये अच्छा आ चुका है, इसीलिए नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे ये वो अपने आप ऐड कर दिया, चेकआउट का अगर आपने रिमूव कर दिया सो इट विल शो एन एरर, और वो एरर पे शो जाएंगे यहाँ पे। इम्प्लीमेंट ऑल मेंबर्स करेंगे तो जितने भी मेंबर्स हैं वो सबको इम्प्लीमेंट करेगा, एंड ऑटोमेटिकली आपका कोड आपके लिए रेडी करेगा। देन यू हैव टू डू दिस whatever the coding that you want to implement in this, and this is called as explicit interface calling. Okay, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो explicit interface calling है। समटाइम्स क्या हो सकता है कि ये चेकआउट मेंबर है ना, तो आप इसके अंदर भी आपको कभी कभी चांसेस हो सकता है, साहब इसमें तो आएगा नहीं, कॉन्सेप्ट ही अलग है तो नहीं आएगा, बट समटाइम्स द मल्टीपल interfaces will be having the same kind of functionality, क्योंकि आपको पता नहीं है कि उसके इंटरफेस के अंदर क्या है। Then in those cases you have to manually call each of these in this way. So this is called as explicit interface calling. Otherwise वो implicit हो जाता है। अगर आपका सेम नहीं है तो वो अगर आप विदाउट ये भी कॉल करेंगे तो ये implicit हो जाता है। Now this is implicit. That is the difference. ये implicit है। अगर आप सेम मेथड्स ले रहे होंगे तो दोनों में then it will you have to call exclusively. ये भी चलता है बट आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कंपाइलर। सो गॉट द आइडिया। सो आप इवन ऑड करके अलग अलग इंटरफेसेस बना सकते हैं और दोनों आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन योर प्रोग्राम। चेकआउट है ना, चेकआउट है। सो सेलेक्ट करो, ऑटोमेटिकली जितना भी मेथड्स उसको चाहिए वो सब ले लेगा वो। ये उसको implicit explicit interface के लिए वो जा रहा है, ठीक है। So in that way you can create the code whatever is required for your program. So understood so far multiple interfaces को कैसे implement करना है। Then what is the actual problem with the classes? तो हमने पहले क्लास बना के चेक किया। हमने जैसे हमने क्लास बना के चेक किया तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम आ गया। मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम इसीलिए आया कि ये क्लास का इम्प्लीमेंटेशन और ये क्लास का इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीटली अलग है। एन इवन कैन नॉट बी एन ऑड। ओके, सो दैट्स व्हाई जब आप इवन को इनहेरिट करना चाहते हो तो वो प्रॉब्लम देता है। सो इन दैट वे एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। सो बेटर इज टू गो फॉर द इंटरफेसेस। अब इंटरफेसेस आप जितने चाहें आप उतने आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई लॉन्ग, आई शॉर्ट, जितने भी आपको करना है वो सब आप कर सकते हैं। एंड द ओनली थिंग इज द प्रोग्राम हैज टू मैंडेटरली इम्प्लीमेंट ऑल दिस थिंग्स। एटलीस्ट इट शुड गो विद दिस एक्सेप्शन। अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होंगे तो एक एक्सेप्शन थ्रो करो कि ये इम्प्लीमेंट नहीं किया करके, नहीं तो ट्राई कैच ब्लॉक में रखो अगर आपका कोड सेफ नहीं है तो। So in that way we can see the interfaces. So interfaces, implementing an interface that we have seen, explicitly calling an interface. So that also we have seen. This is the explicit way of calling the interface. And inheritance in interface. In interfaces में inheritance होता है क्या? होता है inheritance? I और Yes. होता है। अब होता है तो अब मुझे ये अगर ऐसा करूंगा तो प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा मुझे। हाँ मतलब जो बेस क्लास में जो हम दूसरे एक्चुअली जो क्लासेस में जो प्रॉब्लम आ रहा है वो हम यहाँ पे ऐसा इनडायरेक्ट वे में हम इनहेरिटेंस ले रहे हैं। बट जनरली क्या करना है ऐसा मतलब, क्योंकि जब तक ये कब लेते हैं पता है क्या, ये इसमें मान लो 1000 मेंबर्स है, ठीक है, और आपको नियरली 60 मेंबर्स इन दिस और सेम 60 मेंबर्स, 60 नहीं 600 समथिंग, 600 members from this I event or pretty much like this 1000 members of the I odd, then in those cases only we have to go for the inheritance. But ऐसा chances बहुत रेयर आते हैं, बहुत ही रेयर, क्योंकि इंटरफेसिंग का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि आपका जो भी ये जो फीचर है ना उसका आपको इनहेरिटेंस से कोई लेना देना नहीं। आपका ये जो फीचर है इंटरफेस ये काफी दूर है इनहेरिटेंस से। सो दैट्स व्हाई आप इंटरफेसेस में जनरली इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बहुत कम देखने के लिए मिलता है, बट सपोर्ट मिलेगा
सपोर्ट मिलने के बाद भी आप एटलीस्ट, इसमें प्रॉब्लम क्या आता है मैं बताता हूँ। सपोज आपने ये एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आता है। ऑब्जर्व माइन्यूटली, इसमें प्रॉब्लम सपोज मैंने 1000 मेंबर्स मैंने यहाँ पे लिया, 600 मेंबर्स ये सेम है, एंड नियरली 400 मेंबर्स ये डिफरेंट है इसमें। तो मैं क्या करूंगा, अगर ये 600 मेंबर सेम है करके मैं आई आउट को ले लूंगा, ठीक है। अब आपको एडवांटेज क्या मिल रहा है, एडवांटेज मैं बता रहा हूँ, आई इवन ही मिल रहा है ना, एडवांटेज इतना ही है ना। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका 1000 मेंबर्स का इसका भी मिल रहा है, प्लस 400 डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन। दैट मीन्स टोटल आपको ये क्लास में 1400 मेंबर्स का इम्प्लीमेंट करके रखना पड़ेगा। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया क्या? एज आई हैव डन दिस मल्टीपल इंटरफेसिंग, तो 1000 का ये प्लस 400 का खुद का, 1000 में हम क्या बचा रहे हैं, 600 ही बचा रहे हैं। सो 600 की इम्प्लीमेंटेशन आपको सेम है करके आपने क्या किया, इसको इनहेरिट कर लिया। इनहेरिट करने के बाद 600 आपका सेम है और बाकी 400 का आपको दूसरे तरीके से आपने इम्प्लीमेंट किया। तो टोटल बन गया आपका 1400 विच यू नीड टू इम्प्लीमेंट इन दिस क्लास। बट इफ आई एम नॉट डूइंग लाइक दिस एंड ये प्रोग्राम के ऊपर है, ये 1000 को इम्प्लीमेंट करना है या ये 600 को इम्प्लीमेंट करना है। नाउ द मेंबर्स will be drastically reduced. Either you are getting the IEven में nearly 600 methods आपका दिया हुआ है वो इम्प्लीमेंट होगा, या एट द मोस्ट जो 1000 मेंबर्स हैं वो आपने यहाँ पे दिया वो मेंबर दिया। इनकेस अगर आपको दोनों चाहिए, आप ये क्वेश्चन बोल सकते हैं नहीं सर हमको दोनों ही चाहिए, दोनों चाहिए तो ये तो है ही है, ये नहीं है क्या, ये ऑलरेडी है। सो विच इज बेटर? सो इंटरफेस inheritance is sometimes disadvantage, because ultimately जब आप इसमें तो कुछ कर नहीं रहे हो ना, इसमें कुछ नहीं कर रहे, जो भी करना है आपको यहाँ पे करना है। अब जो भी यहाँ पे करना ही है तो इनहेरिट करने की क्या जरूरत है, इसको भी इनहेरिट करो, अगर नहीं चाहिए तो निकाल दो। तो ड्रास्टिकली इम्प्लीमेंट करने का जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, या अगर आपको आई आउट करना है तो आई आउट करो, दोनों करना है तो दोनों करो। सो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा आपको इसमें मिलता है। So keep them separate as much as possible. Keep them separate as much as possible, and इसमें वही implement करो जो इसमें नहीं कर रहे हो। So in that way you are getting the best of both worlds, कि इसका भी मिल रहा है आपको, इसका भी मिल रहा है। अगर आपको दोनों implement करने तो दोनों का भी करना पड़ेगा। So आपका कोड बेस थोड़ा कम हो जाएगा। Got it? Clear? Then multiple interfaces, inheritance का भी खत्म हो गया। Then coming to the iDisposable and iComparable। अब ये iDisposable क्या है? iDisposable को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे थोड़ा डायग्रामेटिकली पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये जो भी प्रोग्राम रन हो रहा है यहाँ पे, ऑल दिस इज रनिंग अंडर द CLR मॉनिटरिंग। ठीक है, ये जो भी चल रहा है यहाँ पे CLR मॉनिटरिंग के अंदर चल रहा है। एंड ये आपका .NET फ्रेमवर्क का CLR है। Sometimes we have to go outside of this CLR monitoring, which is sometimes you have to create the components, you have to create some code which is not actually managed। इसको बोलते हैं managed code। ठीक है, इसको बोलते हैं managed code, and इसको बोलते हैं unmanaged code। ये दोनों अलग अलग है। अब .NET फ्रेमवर्क के थ्रू आप जो भी आप बनाते हो ना, ये मोस्टली 99% मैनेज कोड ही तैयार करते हैं। बट समटाइम्स यू मे बी इंटरफेसिंग विद एक्सटर्नल जैसे कि आपके कंपोनेंट्स रहते हैं, C++ के कंपोनेंट्स है ना। तो ये जो कंपोनेंट्स को आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है आपके एप्लीकेशन के अंदर, देन ये इसके ऊपर एक रैपर बनाना पड़ता है। सो दैट इज कॉल्ड एज runtime
रैपर्स एंड कॉम मार्शलिंग। सो आपने ये टर्म सुने होंगे, ये कॉम मार्शलिंग के थ्रू, ये जो अनमैनेज्ड कोड को, ये जो अनमैनेज्ड कोड को हम मैनेज्ड कोड के अंदर चलाने के ट्राई करेंगे। ये जो अनमैनेज्ड कोड मीन्स सी प्लस प्लस कोड इसका नहीं है ना, डॉटनेट का कोड नहीं है, बट सी प्लस प्लस लाइब्रेरी और सी प्लस प्लस कॉम्पोनेंट आपको इंटीग्रेट करना ही है, बिकॉज इसमें कुछ तो भी फंक्शनैलिटी है, आप उसको लेना पड़ेगा। आपको पेमेंट गेटवे का होगा या कुछ और होगा, रिपोर्ट्स होगा, लाइब्रेरी होगा, जो भी फंक्शनैलिटी है आपने परचेज किया, परचेज करने के बाद दिस इज कम्प्लीटली अनमैनेज्ड कोड, लेकिन चलाना है डॉटनेट के अंदर। देन ये जो कंपोनेंट्स के ऊपर आपको, बिकॉज दिस इज एन अनमैनेज्ड कोड, अनमैनेज्ड इन द सेंस इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनता है, इसके अंदर मल्टीपल जो भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, इसका कोई चेकिंग नहीं रहता, क्योंकि ये जीसी मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ये अनमैनेज्ड है ना, ये जीसी के अंडर नहीं आती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके कंपोनेंट को ही ऐसा देना पड़ेगा कि इट हैज टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट्स इन ए सर्टेन वे, and there comes this particular feature that is called as iDisposable। तो ये iDisposable क्या है, जब भी आप कंपोनेंट बनाते हो ना, जब भी आप कंपोनेंट बनाते हो तो आपको iDisposable कॉल करना पड़ेगा। अब ये केस में तो मैं, देखो ये क्या करता है, अब ये पूरा मैं हटा देता हूँ इसमें, ठीक है, चेक की जाए, सब मैं हटा देता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जैसे मैं कंपोनेंट बना रहा हूँ सपोज, ठीक है, क्लास, दिस इज ए क्लास, अच्छा ये इम्प्लीमेंटेशन फ्लो। हाँ, अब ये बोल रहा है कि ये iDisposable अगर किए होंगे ना तो उनको कंपल्सरीली डिस्पोज मेथड कॉल करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द डिस्पोज मेथड? दिस इज द डिस्पोज मेथड। ये डिस्पोज क्या करता है, इट इज मॉनिटरिंग द unmanaged components runtime and it is going to destroy through this iDispose method। ये हम एक्सक्लूसिवली ये मेथड को सपोर्ट करके दे रहे हैं। सो एक फाइनलाइजर कॉल करके, मतलब ये डिस्ट्रक्टर एक्चुअली क्या करता है, डिस्ट्रक्टर पे अटैच कर रहे हैं हम। डिस्ट्रक्टर क्या करेगा, इसको मैंडेटरली कॉल करेगा so that all the references of this particular external component, external unmanaged code is completely removed from the memory। so ये look after करता है ये iDisposable। so that's why जब भी आप components बनाते हैं, जब भी आप external libraries के साथ interact करते हैं, not the .NET framework projects, अब भी जब external unmanaged code को जब आप integrate करते हैं तो आपको iDisposable कॉल करना पड़ेगा on those components। So then .NET framework will kickstart this dispose method on all the unmanaged, on all these kind of unmanaged components। So यहाँ पे GC काम नहीं करेगा, यहाँ पे dispose method one by one check करेगा and it will completely remove from this memory। बस इतना ही implementation, वो dispose का इतना ही। देखो ये suppress finalize means actually ये क्या कर रहा है, जीसी का एक मेथड है, फाइनलाइज मेथड को सप्रेस करके जीसी को हैंड ओवर कर रहे हैं। अगर ये कॉल करेंगे तो आपका क्या होगा, फाइनलाइज मेथड, हर एक ऑब्जेक्ट का फाइनलाइज मेथड एक रहता है, डिस्ट्रक्टर मेथड, वो जो डिस्ट्रक्टर को हम सप्रेस करके हम जीसी को हैंड ओवर कर रहे हैं। अगर ये कोड एनेबल करेंगे, अगर ये कोड नहीं एनेबल करेंगे तो क्या होगा, वो फाइनलाइज, जब तक वो डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा तो तब तक वो पड़ा रहेगा मेमोरी में डिस्ट्रक्टर को। बट कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रक्टर प्रॉपर्ली कॉल नहीं होता, they keep on pending lying in your memory, so sometimes ये प्रॉब्लम दे सकता है। so एक्सक्लूसिवली ये करने का तरीका ये है। so ये ऐसा ही करना जरूरी नहीं है, ये प्रोग्रामर के ऊपर है। अगर वो कंपोनेंट का थोड़ा लाइफ टाइम ज्यादा रहता है तो ये भी कभी कभी काम में आ गई, क्योंकि इमीडिएटली डिस्पोज नहीं कर सकता, वो इमीडिएटली डिस्पोज नहीं करेंगे तो फिर ऐसा इसका कुछ फंडामेंटल टॉपिक्स है, तो अपने स्टडी का एरिया नहीं है वो। दिस इज कम्प्लीटली RRW CCW करके दो कालेबल रैपर्स मार्श कॉमन, ये थोड़ा थियोरेटिकल स्टडी आपको करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। वी विल नॉट राइट, यस सर हम अनमैनेज्ड कोड यूज कर रहे हैं .NET में, तो उसका रेफरेंस तो लगेगा ना हमें, तो डिस्पोज क्यों करना है सर? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। एक्चुअली क्या करते हैं, रेफरेंस कोड ले रहे हैं, मतलब ये अंदर में ना एक रन टाइम कॉलेबल
रैपर करके एक बनाता है, ठीक है। डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर ले लिया इसने, अंदर लेने के बाद इसका जो लाइब्रेरी है ना इसके अंदर चलता रहता है, एंड विच इज नॉट मैनेज्ड बाय दिस CLR, विच इज नॉट मैनेज्ड बाय दिस CLR। अब हम ये कॉल करके क्या कर रहे हैं बताए, कि ये कॉल करके इसका एक मेथड एक्सपोज कर रहे हैं, सो दैट वी आर गिविंग द कंट्रोल टू दिस GC, वी आर गिविंग द कंट्रोल टू दिस GC। सो दैट्स व्हाई ये अपडेट का अगर लाइफ टाइम खत्म हो जाता है तो GC क्या करेगा, इसको कंप्लीटली रिमूव करेगा। ये डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज एक्सटर्नल प्रोग्राम है। तो ये करने का तरीका है। सिमिलरली एक CCW करके है, वो थियरी में आपको आएगा, ठीक है। सो ये लेने का तरीका वो है। अदरवाइज CLR में जो ऑब्जेक्ट बनता है ना डायरेक्टली ऐसा बन जाता है, और डायरेक्टली दीज ऑब्जेक्ट्स आर गेटिंग रिफर्ड, गेटिंग स्कैन्ड विद द GC, एंड उसका जो 1 2 3 जो भी लाइफ टाइम है होने के बाद सिंपली डिस्ट्रॉय करेगा, मेमोरी को रिक्लेम करेगा। लेकिन ये CLR के मॉनिटरिंग में नहीं चल रहा, ये कुछ और मॉनिटरिंग के अंदर चल रहा है, तो इसको पता नहीं चलेगा कब इसको डिलीट करना है। CLR को आइडिया ही नहीं रहेगा कि इसको डिलीट कब करना है, इसके ऊपर एक रैपर बना हुआ है। तो हम एक्सपोज करेंगे यहाँ पे, जब भी डिस्ट्रक्टर कॉल होगा ये ऑब्जेक्ट का, ये डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, ये प्रोग्राम के अंदर जब भी ये क्लोज करते होंगे जो भी प्रोग्राम, तब ही ये डिस्पोज कॉल होंगे। जब ये डिस्पोज कॉल होगा हम हैंड ओवर कर रहे हैं GC को। ये ऐसा कोडिंग हमने बना कर। अब ये ऑटोमेटिकली नहीं होता, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक मैंडेटरी चीज दे दिया कि आई डिस्पोजेबल कॉल करो। जब आई डिस्पोजेबल कॉल करेंगे तो हम ये कंट्रोल देने के कंडीशन में होंगे GC, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। नहीं तो आपका ये है ना एक्सटर्नल लाइब्रेरी पड़ा रहेगा मेमोरी में इनफाइनाइट टाइम तक, फिर आपका मेमोरी हॉग हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो जाएगा। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद द एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। आई डिस्पोजल किस क्लास पे लगाना है सर फिर? कोई भी क्लास में लगा सकते हैं जब आपका कंपोनेंट, ये नहीं कंपोनेंट डेवलपर्स राइट करेंगे, आप नहीं करोगे, कंपोनेंट डेवलपर्स आपको इंप्लीमेंट करके देंगे। ओके मतलब आपने एक कंपोनेंट बनाया, दिस कंपोनेंट इज this component is implementing this iDisposable। अब ये जो भी बन रहा है ना अभी डॉटनेट के अंदर बन रहा है, तो इसीलिए आपको डिफरेंस तो समझ में नहीं आएगा। ये ऐसा आपने बना दिया, जैसे आपने कंपोनेंट का iDisposable बनाया, देन ये अपना ये वाला फंक्शनलिटी आपके लिए रेडी हो जाए, ठीक है। तो कंपोनेंट को लेने का भी एक तरीका है, कंपोनेंट को एक एक्सटर्नल कंपोनेंट को लेने का भी सम सेपरेट कोडिंग आता है, वो अभी इसमें हम डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं। सो थियोरेटिकली क्या हो रहा है कि होता यही है, बाहर के जो कोड रन टाइम अगर मैंने अनमैनेज कोड अगर आपके मैनेज कोड के अंदर चलता है तो रन टाइम कॉलेबल रैपर करके एक रैपर बना देता है। वो रैपर का लाइफ टाइम पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आई डिस्पोज मेथड को कॉल करना पड़ेगा, इतना आप याद रखें, ठीक है। देन सिमिलरली वी गॉट अनदर वन दैट इज कॉल्ड एज आई कंपैरेबल। अब ये आई कंपैरेबल क्या है, आई कंपैरेबल इज ए डिफरेंट एक इंटरफेस है विच इज लाइक ऑल्सो मैंडेटरी। आप करोगे तो आपको चेक करना पड़ेगा कंपल्सरली वेदर द डेटा टाइप्स आर सेम और नॉट। उसका एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्लास को हटा दूंगा, यहाँ पे ये भी हटा दूंगा, एंड इसका मैं एक नॉन एग्जाम्पल में बता देता हूँ। नॉन एग्जाम्पल में क्या होता है कि आपको जल्दी समझ में आ जाता है कि ये हो क्या रहा है। सपोज आई एम इम्प्लीमेंटिंग वन आई एनिमल एक वॉइस, हाँ ठीक है, स्ट्रिंग वॉइस, ऐसा ऐसा में एक मेथड मिल जाए, ठीक है। एंड सेकेंडली आई एम इम्प्लीमेंटिंग वन प्रॉपर्टी विच इज प्रॉपर्टी नहीं आ रहा, प्रॉपर्टी नहीं आ रहा तो ऐसा गेट सेट भी कर सकता हूँ। दिस इज द डिफॉल्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। एक हमने एक एनिमल का एक इंटरफेस लिया है, हर एक एनिमल की एक वॉइस रहेगा, हर एक एनिमल का एक नेम रहेगा।
So this is what interfaces do. Now मैं एक क्लास बना रहा हूँ. Suppose the class is dog. ठीक है, अब ये dog class बना रहा हूँ. And what I'm doing is I am implementing this interface iAnimal, which is my custom. ये custom है. Custom मतलब custom interface. And one is .NET framework given. आई कंपेरेबल, ये .NET फ्रेमवर्क के इनबिल्ट वाला है. ठीक है, so ये दोनों इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. ये मैं एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ. एंड ये भी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ये भी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ. दोनों को इंप्लीमेंट करने के लिए सेम थिंग. जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, आई डिस्पोज वाला हटा दूंगा, मैं इसकी जरूरत नहीं है. इसकी डिस्पोज ऑफ कोड आई हैव टू रिमूव. नाउ द एरर इज यू हैव टू इंप्लीमेंट दिस इंटरफेस. नॉट इम्प्लीमेंटेड का ये देखो यहाँ पे नॉट इम्प्लीमेंटेड ये आ रहा है. एंड सेकेंडली वॉइस का, तो वॉइस का कहाँ है? अच्छा, वॉइस के नीचे है. देखो ये दोनों यहाँ पे आ रहे हैं. वॉइस का भी नॉट इम्प्लीमेंटेड है. अब इसमें हम क्या करेंगे, रिटर्न आई विल बार्क. ऐसा मैंने इम्प्लीमेंट, मतलब डॉग है तो बार्क करेगा, इसका वॉइस वही है. ठीक है, एंड यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नेम. सो नेम this is iAnimal dot name. iAnimal dot name. Implement क्या प्रॉब्लम है इसमें, ये यहाँ पे है. And what is this? iAnimal dot name नहीं आ रहा. ओके, get go new set. इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे set set name is equal to some letter. प्रॉपर नहीं बना शायद. गेट का यहाँ पे बंद हो रहा है. ठीक है, एंड सेट का यहाँ पे बंद हो रहा है. अभी क्लैरिटी आ गया. सेट गेट मेन गेट सेट. पब्लिक तो करना नहीं पड़ता वैसे, क्योंकि दिस डॉट what is this? The modifier public is not valid for this item C# 1.3. Okay, ठीक है. And then why it is not coming in this?
name gets it. Element name. कोई बता सकते हैं क्यों नहीं आ रहा है? इसके पहले एग्जाम्पल में तो आ रहा था। animal dot name. चलो तब तक इसको इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ, इससे क्या इशू है देखते हैं। एंड आई कंपेरेबल को मैं अगर ये नहीं कर रहा हूँ कंपेरेबल का फिक्स, यस, अब ये आई कंपेरेबल का इम्प्लीमेंट इंटरफेस करूंगा तो ये वाला मेथड कंपल्सरीली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कंपैरेटिव से कंपैरेटिव ऑब्जेक्ट क्या है कि हम कंपेयर करने वाले हैं कि वेदर द लिस्ट ऑफ some objects are same or not, like that we can create. Okay, अब इसमें क्या करेंगे, एक लिस्ट ऑफ डॉग्स का एक क्लास ले लेंगे हम, ठीक है। सो डॉग list could not be found or in collection of generic. Okay, so इसका एक particular namespace आपको लेना पड़ेगा because this is a list, so it will come under this collections which is a generic type. Okay, so this particular list is a generic type. So generics क्या है आपके आगे के 2 सेशंस के बाद समझ में आएगा. So this is a coding for declaring the list of objects. So right now the docs is a class whichever we are declaring here, and ये जो class का हम collection बना रहे हैं एंड वो कलेक्शन के अंदर हम कुछ ऐड करेंगे लाइक लैब एंड इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने को कंस्ट्रक्टर देना पड़ेगा. सो कंस्ट्रक्टर आई विल गिव हियर इन दिस क्लास. So the constructor will be like public dot then this dot name. अच्छा यहाँ पे नेम देना पड़ेगा. प्राइवेट नहीं भी लिखा तो प्राइवेट ही रहता है, ठीक है. तो या तो प्रॉपर्टी बना लो इसका, प्रॉपर्टी एंड द नेम इज शुड बी डॉग नेम कर लेते हैं, डॉग नेम एंड दिस इज डॉग नेम इज इक्वल टू नेम. ये कंस्ट्रक्ट में हम सिंपली हम ये फील्ड को अटैच कर दें. उसके बाद ये वॉइस वाला हमने इम्प्लीमेंट किया विच इज कमिंग फ्रॉम दिस इंटरफेस एंड देन ये वाला क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया तो समझ नहीं आ रहा. नहीं इम्प्लीमेंट होना चाहिए. Okay, for the time being, I'm just removing this or commenting this. Okay, इसका मैं देखता हूँ, डिबग करके चेक करता हूँ. फिलहाल के लिए हमने एक ही लिया वॉइस करके एक एनिमल आई एनिमल के अंदर, and this is the variable in which I am passing the name of the dog name, and here my name is no, I am and just a second, I am getting it.
So now okay, so I have to यहाँ पे मैं कॉन्केटनेट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, है ना. So I will write here as the name, yes, and I will bar. जस्ट हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ये क्लास के अंदर जो भी ये जो कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो वेरिएबल मिल रहा है उसको पास करते हुए हम कुछ फंक्शनलिटी डिस्प्ले करना चाहते हैं, बिकॉज द डॉग वॉइस क्या है, हर एक एनिमल के एक वॉइस हो सकते हैं. सिमिलरली आई कैन शो दिस काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड द नेम विल कम फ्रॉम हियर. ओके, द डॉग नेम विल कम फ्रॉम हियर. So similarly what I will do is I will just add some different names like what are the types? German Shepherd, then Pomerian, suppose street. ऐसा हमने 4 वेराइटीज लिए. 4 वेराइटीज लेने के बाद then what we are doing, as it is a list, it can be sorted. क्योंकि लिस्ट में आप जैसे लिस्ट बनाते हो इसको, ये देखो ये लिस्ट है, ठीक है, दिस इज अ कलेक्शन. सो दिस कलेक्शन इज एन्यूमरेबल. एन्यूमरेबल है तो आपको ये इतने सारे कैपेसिटी क्या है उसका फॉर ईच आप लगा सकते हो, रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं. सो डॉटनेट फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली गिव्स सो मेनी फीचर्स टू यू. सो उसका काउंट आप कैलकुलेट कर सकते हो. इफ आई कॉल दिस इट विल प्रिंट 1 2 3 4. ओके, सो इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, सिंपली एक मेथड कॉल कर रहा हूँ सॉर्ट. सो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सॉर्ट करेगा बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन. अगर इंटीजर है तो इंटीजर्स का सॉर्ट करेगा, एंड एज इट इज ए कैरेक्टर्स तो कैरेक्टर बेस में सॉर्ट करेगा. एंड इसमें हम क्या करेंगे, फॉर ईच टाइप ऑफ दिस, ओके, in this docs, what I'm going to write is console dot write line, and here I will call the method which is given here. Okay, so I'm going to call this method which is given here. तो ये ऐसा हम एक करके देख सकते हैं. ये यहाँ पे हो रही है, this is not here. For each, then this has to be this. Public is not valid. Not comparative. A comparable. ये पहला वाला मेथड है, ये दूसरा वाला मेथड है फ्रॉम आई एनिमल. ओके, एंड ये हो गया स्टैटिक मेन मेथड, एंड दिस इज आई कंपैरेबल. इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, दिस इज इंटरनल. ओके, नेम स्पेस का मैंने दिया है. ओके, सो दैट इज इन दैट यू कैन कोलैप्स एंड सी व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि वो बार बार वो करली ब्रेसेस का एरर दिखा रहा है. एक्चुअली कोड अगर एक्सपेंडेड मोड में तो समझ में नहीं आता. सो यू कैन कोलैप्स एंड सी व्हाट इज हैपनिंग विद दैट. तो अभी प्रॉपर है ये, ठीक है. अब इसमें हम क्या करेंगे, सपोज कंसोल डॉट रीड करेंगे यहाँ पे, सो दैट यू कैन डिस्प्ले, यू कैन सी द रिजल्ट. देन इसमें मैं बाद में आता, कंपैरेटिव में बाद में आता. फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, इसको रन करके चेक करेंगे. जैसे हम रन करेंगे तो नॉट कंपैरेटिव कॉल हो गया है. ओके, कंपैरेटिव इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट इज गिविंग एन एरर. रिटर्न 0 करूँगा, रिटर्न 0, whether it is fine, we will see. Yes, now it is fine. अब देखो, हमने 4 ये ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं.
ये चारों ऑब्जेक्ट्स का लैब्राडोर भी बार्क करेगा, जर्मन शेफर्ड भी बार्क करेगा, है ना। तो ये जो बार्क है ना, कंपल्सरी, ये कंपल्सरी है। इफ इट इज एन एनिमल, द कॉन्सेप्ट इज इफ इट इज एन एनिमल, definitely it should be having some words. So that's why every class animal class should be implementing this iAnimal. So thereby we are getting this feature which is compulsory to be implemented in the implementing class, and ये आपको completely यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एंड इसमें एक और चीज क्या है, इसमें आप कंपेयर भी कर सकते हैं। अब कंपेयर कैसे करेंगे कि वेदर ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम टाइप, वो कंपेयर करने के लिए अगर आई एम गोइंग टू स्टॉप एंड हियर आई विल राइट इफ एज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये बाय डिफॉल्ट आया है क्योंकि आई कंपेयर बोले तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है, ठीक है। सो इफ द ऑब्जेक्ट इज animal then we have to return dog name compare to object as iAnimal, इसका टाइप कास्ट बोलते हैं। सो टाइप कास्ट करके मैं उसका इसमें नेम नहीं लिया, मैं dot name, this is इसको करूंगा मैं एनिमल नेम, ठीक है, सो दैट क्लैरिटी आएगा। अब ये एनिमल नेम हमने इंप्लीमेंट नहीं किया, तो इंप्लीमेंट नहीं किया तो ये अगेन सेम प्रॉब्लम दे रहा है, वापस वही बात होगी क्योंकि मुझे चेक करना तो लेना पड़ेगा इसको। अब इसको लेता हूँ तो ओके, ठीक है, चेक करता हूँ एनिमल नेम, यस एनिमल नेम आ गया। सो एनिमल नेम इज if the object is return 0, compare में क्या error है, compare the current instance with another object value that indicates not all, okay, अच्छा, ये actually अब चला गया। ये कुछ नहीं है, ये क्या बोल रहा है कि अगर ये रिटर्न करता है तो यहाँ से तो रिटर्न नहीं हो रहा है ना, ये एल्स पार्ट है एक्चुअली। तो एल्स पार्ट में रिटर्न कहा गया है, तो ये ऐसा सी शार्प का बहुत ही छोटे छोटे एरर्स आते हैं, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ये पूरा निकालना है तो आप ये दोनों निकाल सकते हैं, इसको भी निकालना पड़ेगा, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, बट इट इज स्टिल गिविंग द सेम एरर। सो ठीक है, तो हम ऐसा भी, ऐसे इफ ऑब्जेक्ट है तो ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम स्टेटमेंट में था। But anyways, it is fine with this. Now we will run this and check here. ऐसे ही चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ये इम्प्लीमेंट हो गया है। नेम रिटर्न प्रॉब्लम एंड हियर सेट में क्या करेंगे, सेट में डॉग नेम इज इक्वल टू वैल्यू करेंगे। अभी इसको प्रॉब्लम सेट, नो इट इज फाइन। ये एक ही सिंगल लाइन में आ रहा है तो कंफ्यूजन दिखेगा, बट दिस इज अ सेट ब्लॉक एंड दिस इज अ गेट ब्लॉक एंड दिस इज अ सेट ब्लॉक, है ना। इससे ज्यादा कुछ नहीं किया हमने, इसको एक्सपांड करेंगे तो नॉर्मल प्रॉपर्टी जैसे है। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, ये एनिमल नेम को डॉग नेम में अटैच कर रहे हैं यहाँ पे, और ये एनिमल नेम यहाँ से आ रहा है, और ये हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो कंपेयर करने के बाद आप अभी देख सकते हो रन करके,
द कौन सा response will be same, आपका response सेम आएगा, but in case if it is not the same type, कभी कभी क्या हो सकता है कि सेम टाइप नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मैं अगर मान लो दूसरा क्लास ले लेता हूँ, सपोज मैंने सेम ये कंपेयर लूंगा, यहाँ पे एक और क्लास बना रहा हूँ विद द नेम ऑफ टाइगर, है ना। टाइगर एक्चुअली जैसे मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा यहाँ पे, ये ऐसे कर लेता हूँ इम्प्लीमेंट, ठीक है, ये अभी इम्प्लीमेंट किया मैंने। अब टाइगर है तो इसका क्या होगा, रिटर्न रोर होगा, है ना, टाइगर रोर्स। सो कंपेयर है तो कंपेयर। अब ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप अगर प्ले करेंगे ना, तो आपको चेक करना पड़ता है कहीं ना कहीं, इफ इट इज द डॉग देन प्रोवाइड दिस, देन यू हैव टू डू दिस। अभी हम सिंपली चेक नहीं करते, चेक करके कुछ एक्शन लेते हैं उसके ऊपर, क्योंकि आपके ये जो लिस्ट में है ना, आपके जो लिस्ट में कभी कभी क्या हो सकता है कि एनिमल्स मल्टीपल क्लासेस का भी आप बनाओगे, तो डॉग्स भी ऐड कर रहे हो उसमें, एंड जेनरिक लिस्ट है तो आप उस टाइप का टाइगर भी ऐड कर रहे हो, देन चीता भी ऐड कर रहे हो, लाइन्स भी ऐड कर रहे हो। सो समवेयर यू हैव टू फाइंड आउट वेदर दैट इज द सेम टाइप और नॉट। सो उसके लिए ये हम कंपैरेटिव यूज करते हैं, एंड ये बाय डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन, इसको आपको कुछ करना नहीं है इसके अंदर, सिंपली यू हैव टू चेक, एंड इफ इट इज सेम then you don't have to do anything. If it is not the same, okay, अगर आपका सेम नहीं है, सपोज मैं यहाँ पे टाइगर को निकाल देता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ इसको चेंजेस करना पड़ेगा, काफी चेंजेस करना पड़ेगा। सो थियोरेटिकली क्या है कि आपको समझने के लिए, सपोज मैं अगर यहाँ पे डॉग का नहीं है टाइगर का है, देन इन दिस केस इट विल फेल। जैसे ही फेल होता है तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि नो 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 डोंट प्रोसेस दिस। सो लाइक दैट द आई कंपेरेबल, ये जो हमने यहाँ पे लिया है आई कंपेरेबल, ये जो है ये आपको टाइप को चेक करने के लिए अलो करता है। सो दिस विल बी मेकिंग यू वेरी to create a very type safe projects. So type safe projects में क्या होता है कि आपके बड़े बड़े क्लासेस रहते हैं, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, हर एक डिराइव्ड रहता है, हर एक डिराइव्ड में भी आपको टाइप चेक करना पड़ता है whether that is the right class or not. So in that way we need to know the proper type. So उसके लिए हम आई कंपेरेबल यूज करना पड़ता है। So this is not mandatory, अगर आपको लगता है तो आप इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर आपको नहीं लगता है तो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, बट बेसिकली this is one of the important interface. Generally when you are playing with the lists like this, you have to depend on this I comparable. Similarly एक और रहता है I enumerable, ये भी by default .NET का provided है, ठीक है। So I enumerable एक इसके थ्रू आप इटरेट कर सकते हो, ये सब आपको बाद में आएगा जब आपका लिंक क्यू आएगा ना, ये जो लिंक क्यू आपको पढ़ाएगा, तो ये I enumerable 100% आपको लेना पड़ेगा। So इसके थ्रू ही आपका पूरा प्रोग्रामिंग चलेगा। So that's why every interface is inbuilt which you can depend upon sometimes like this in the .NET framework. अब ये प्रोग्राम समझ में आएगा। So actually fully implement करने के लिए तो it will take some time, क्योंकि इसमें इसका भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर टाइप है कि नहीं। तो बेसिकली हमने एक क्लास बना के चेक कर लिया। So it will run fine if it is the same type. Otherwise वो क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा। तो लूप एक्सप्लेन करो ना if का, वो ये वाला so स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करता हूँ। If, सबसे पहले if कौन सा if वाला, हाँ यहाँ पे कंपेयर किया ना, ऑब्जेक्ट इज एनिमल, ओके मतलब ओके दिस ऑब्जेक्ट एक्चुअली ये आई कंपेरेबल में हम स्टार्ट कर रहे हैं। वो ऑब्जेक्ट कौन सा सर, ऑब्जेक्ट जो ये आया ऑब्जेक्ट ये जो है ना आई कंपेरेटिव, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा है। आई कंपेरेबल किसमें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, डॉग पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो डॉग के जो ऑब्जेक्ट है, ये जो डॉग का जो ऑब्जेक्ट है, दिस एक्चुअली इसके अंदर दिस जाता है, ठीक है। ये जो डॉग का ऑब्जेक्ट इज ऑफ टाइप आई एनिमल, तो आई एनिमल यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है, तो ये एलो करेगा, ठीक है। एंड अगर ये सेम है, मतलब सेम टाइप है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको रिटर्न करो बाई कंपेयरिंग देयर नेम्स। अब ये नेम है तो प्रॉपर्टी में लिया हमने, इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। आई एनिमल का भी ऑब्जेक्ट को, मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या है, डॉग ऑब्जेक्ट है, ये डॉग ऑब्जेक्ट आई एनिमल टाइप में हमने कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद
उसका एनिमल नेम में कंपेयर कर रहे हैं विद दिस डॉग। एनिमल नेम इंटरफेस का है, डॉग नेम क्लास नेम, इसीलिए मैंने नेम करके, नॉर्मली क्या करते हैं नेम नेम करके देते हैं, बट इसको मैंने बनाया है डॉग नेम बिकॉज दिस इज फ्रॉम द क्लास, है ना। सो दिस इज फ्रॉम द क्लास एंड वेयर एज हियर आई एम टेकिंग एनिमल नेम, सो दिस इज फ्रॉम द इंटरफेस। इफ बोथ आर सेम देन, बोथ आर सेम मीन्स उसका ऑब्जेक्ट का टाइप सेम है, देन इट इज रिटर्निंग ट्रू, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैच हो रहा है करके अपना अपने को कोई एरर नहीं आया। इफ इट इज नॉट मैचिंग देन इट विल गिव एन एरर। ये सिंपली हम चेक करने के लिए, और ये पूरा का पूरा कोड जनरेट करता है विद दिस आई कंपैरेबल। जैसे मैं उसको इम्प्लीमेंट कर दिया ना, सो इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको ये मैंडेटरली, अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये फिर भी ऐसे ही चलेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये देखो यहाँ पे नीचे, अच्छा ये वाला प्रोग्राम कह रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ इसको, ठीक है। और इसको रन करता हूँ, ये सॉर्ट नहीं कर रहा, सॉर्ट इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि आई कंपेरेबल नहीं लिया। ठीक है, आई कंपेरेबल, सो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट। अब आई कंपेरेबल लिया तो मुझे ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। इम्प्लीमेंट होने के बाद देन आपका ये जो कोड जो क्रिएट हुआ था, ठीक है, ये देखो ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो रहा है, हमने क्रिएट नहीं किया क्योंकि दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस आई कंपेरेबल। लाइक इन द केस ऑफ आई डिस्पोजेबल, आई डिस्पोजेबल में क्या होता है, डिस्पोज का मेथड कॉल ऑटोमेटिकली होता है। सो डिस्पोज में फाइनलाइज जीसी डॉट सप्रेस, है ना, जो हमने पहले के एग्जांपल में चेक किया था, वो सब मैंडेटरी आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा बिकॉज इंटरफेसेस आर मैंडेटरी। सिमिलरली ये भी मैंडेटरी है। अब ये मैंडेटरी है तो इसमें आपको क्या करेंगे, कंपेयर करने के लिए आप ये जो कोड है हमने जोड़ा मॉडिफाई किया इतना पार्ट, वो आपको डालना पड़ेगा। अदरवाइज दिस मेथड इज एन इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन, ये इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन। उसमें हम क्या कर रहे हैं, सिंपली चेक कर रहे हैं। कंपेरेटिव है तो हम क्या करेंगे, कंपेयर चेक करेंगे ना। सो लाइक दैट वी आर डूइंग द कोडिंग एंड वी आर गेटिंग द आंसर। गॉट इट? एनी डाउट्स? सर एक बार करना सर, ऑब्जेक्ट इस टाइप ऑफ एनिमल मतलब कैसे, वो थोड़ा सा। ये मैं समझा था। ये देखो ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑटोमेटिकली ये देखो ये कौन सा क्लास का है, ये क्लास का है, ठीक है, डॉग क्लास है ये। अब ये डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे पास हो रहा है, बाय डिफॉल्ट होता है, हम पास नहीं कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो देखो यहाँ पे कंपैरेटिव में पास कर रहे हैं, और ओबीसी में दिस बाय डिफॉल्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाला हम चेक कर रहे हैं। इफ इट इज ऑफ द टाइप ऑफ आई एनिमल, दिस करंट ऑब्जेक्ट इज टाइप ऑफ द आई एनिमल, है ना, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करो विद दिस नेम। अब सिंपली समझो कि ये देखो ये क्लास है, ये अपना इंटरफेस है, डॉग हमने इम्प्लीमेंट किया आई एनिमल में, तो ये इसका प्रॉपर्टीज तो हमने इम्प्लीमेंट किया ना यहाँ पे आई एनिमल पे, यहाँ पे जो वॉइस है ना, ये इम्प्लीमेंट किया ना, तो दैट्स व्हाई इट इज ऑफ बिकमिंग दिस टाइप। एंड दोनों को हम चेक कर रहे हैं, चेक करने के बाद यहाँ पे हम रिटर्न ट्रू और फॉल्स सेंड कर रहे हैं। रिटर्न 1 मीन्स ट्रू, रिटर्न ट्रू 0 मीन्स फॉल्स। ये बाय डिफॉल्ट चलता है, बाय डिफॉल्ट चलने के बाद एग्जीक्यूट, ठीक है। सो ये थोड़ा आप ये एग्जांपल में शेयर करूंगा आपसे, ठीक है, आफ्टर दिस सेशन। जस्ट गो थ्रू करना है थोड़ा, एग्जांपल्स को आप इम्प्लीमेंट करके देख लेना डिफरेंट डिफरेंट वे में, देन यू विल गेट द क्लैरिटी। इसमें एक और 2 मेथड्स ऐड करो, मेथड्स को ऐड करो और उसमें इम्प्लीमेंट करो। 2 इंटरफेसेस ले लो और आई कंपेरेबल ले लो। आई कंपेरेबल लेने के बाद आप अपने हिसाब से ट्राई करो। ये सब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर में छोड़ रहा है, ठीक है। हेलो सर। तो यस, हाँ सर, ऊपर हमने वो इम्प्लीमेंट्स किया है तो नीचे फिर कंपेयर टू करके मतलब चेक करना मैंडेटरी रहता है? हाँ नहीं नहीं, देखो
अरे अब सेम हो गए, अगेन वही क्वेश्चन पे आए। अगर आप आई कंपेरेबल ले आए तो ये तो मैंडेटरी बन गया ना। अगर आपको मैंडेटरली चाहिए तो ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा ना। यू आर कमिंग टू द बेसिक क्वेश्चन, अगर इंटरफेस लिया तो मुझे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा क्या? तो करना ही पड़ता है वो, बिकॉज वी हैव डिस्कस दैट दिस इज मैंडेटरी। अब मैंडेटरी है तो ये नो नो implement करना सर, हाँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि ऊपर हमें पता चल रहा है कि ये वाला इम्प्लीमेंट्स हमने किया है, डॉग हाँ डॉग ने आई एनिमल को इम्प्लीमेंट्स किया है, राइट? हाँ और आई हाँ कंपेरेबल हमने नहीं लिया, तभी चलेगा हाँ। ना? नहीं ना, वो कैसे चलेगा? अभी ये आई कंपेरेबल मैंने हटा दिया तो ये आपको मेथड आएगा ही नहीं, ये वाला हट जाएगा। ये मेथड, अरे सिंपल देखो, ये मैंने आई एनिमल लिया करके वॉइस का मेथड आया, ठीक है, ये वॉइस हाँ का मेथड आया। जैसे ही ये sorry, जैसे ये आई कंपेरेबल लिया तो ये मेथड आया। इट इज एज सिंपल एज राइट। दैट। इसमें डाउट, इसमें कंफ्यूजन क्या है? अगर मैं यहाँ पे आई कंपेरेबल हटा देता हूँ मान लो, तो इसकी जरूरत ही नहीं है ना। हाँ इसकी जरूरत क्या है? नहीं है, तो फिर भी आपका प्रोग्राम ऐसे ही चलेगा। हाँ सर, वही पूछना था मुझे कि वो लेना कंपलसरी रहता है क्या नहीं हर नहीं, बार? लेना कंपलसरी इसीलिए है कि क्योंकि हमने आई कंपेरेबल लिया। आई कंपेरेबल इसलिए लिया क्योंकि मुझे ये पढ़ाना था। ओके सर, समझे ओके, गॉट इट। गए? तो हमने एक्चुअली क्या किया, आई कंपेरेबल मैंडेटरी नहीं लिया है, इसको प्रेजेंट कैसे करूंगा मैं, इसको आपको एक्सप्लेन कैसे करूंगा मैं आई कंपेरेबल को। तो आई कंपेरेबल इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इंटरफेस विच इज प्रोवाइडेड बाय डिफॉल्ट बाय द डॉट नेट। ये हमने नहीं बनाया, ये हमने बनाया क्या? नहीं बनाया, ये हमने बनाया है, ये डॉट नेट का कस्टम मेड है। सिमिलरली आई एन्यूमरेबल एक है ना। सो लॉट्स ऑफ इंटरफेसेस आर देयर, यू कैन सी आई कंपेरर है, आई डिक्शनरी है, आई डिस्पोजेबल है, आई एन्यूमरेटर है, आई फॉर्मेट प्रोवाइडर है, आई लिस्ट है। सो इतने सारे इंटरफेसेस है बाय डिफॉल्ट अवेलेबल। सो अगर इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है तो ये लेना पड़ेगा, जो इसका नजर आया था ना, सॉरी अभी तो नहीं आएगा वो, ठीक है। सो प्रीवियस वाला वो आपको लेना पड़ेगा, देन ओनली इट विल वर्क। क्योंकि ये इंटरफेस है, अब ये इंटरफेस है तो ये तो लेना पड़ेगा, अब ये लेना पड़ेगा तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो थिंग इज लाइक दैट। नाउ गॉट इट, एवरीबॉडी गॉट द आइडिया? कोई डाउट? किसी का कोई डाउट है? किसी का कोई डाउट? नो? यस। सर वो थोड़ा सा ईफ का ही बताएंगे क्या, वो कैसा लिया है? क्या 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 बोल रहे हैं? ईफ का अंदर का जो लिया है ना, उसका थोड़ा ये एक्सप्लेन करो ना सर, थोड़ा स्लो में करो ना, थोड़ा समझ में स्लो में करूँ क्या? हाँ ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, इंटरफेस लिया। अच्छा ये आप इसकी बात कर रहे थे, इसकी बात कर रहे थे? हाँ सर, वो दिस ये वाला डॉग। है क्या? हाँ सर, देखो ये अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, ये ऐसा भी करूंगा ना वो, सॉरी ये ऐसा भी करूंगा ना, सेम वैसे ही चलेगा। ये लॉजिक इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने लॉजिक में क्या है कि डॉग नेम, अगर डॉग आ रहा है तो वो उतना चेक कर रहा है। बाकी इसमें आपको कंपेयर कहाँ करना है कि अगर ये ऑब्जेक्ट आई एनिमल टाइप का है क्या, ये चेक करेंगे। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी आपके प्रोग्राम में आई एनिमल भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं और आई कस्टम मेड का बता रहा हूँ, आई मटेरियल करके भी मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, आई ट्रीज करके भी मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। सिमिलरली मतलब एक एनिमल्स का लिया मैंने, एक मटेरियल्स का लिया, एक ट्रीज का लिया। अब जब आप सारे के सारे जब इंप्लीमेंट करेंगे तो डॉग क्लास में आ गया। जब डॉग क्लास में जब आप एन्यूमरेट करोगे या कुछ असाइनमेंट्स करना चाहते हो तो कंपेयर टू आपके काम में आएगा। इफ दिस ऑब्जेक्ट इज ऑफ दिस टाइप तो आप फर्दर प्रोसीड करो, अगर नहीं है तो प्रोसेस मत करो। अगर कभी कभी क्या होता है कि ये डॉग में आप एन्यूमरेट करने चाहते हो ट्रीज का, ओके, एंड कभी कभी डॉग में आप करना चाहते हो फर्नीचर वुड लाइक, है ना। तो ऐसा क्योंकि ये सभी इम्प्लीमेंटेड है तो सभी इसके अंदर आ गया। जब सभी इसके अंदर आ गया तो आपके ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, एंड बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है तो आप कॉशियसली प्ले करेंगे कि इफ दिस इज द टाइप ऑफ दिस देन ओनली process this logic. If it is not the case, then return with an error. क्योंकि आप कंपेयर करना चाहते हैं, अगर नहीं करना चाहते इसको निकाल दो, इसको निकाल देंगे तो वो वाला फंक्शनलिटी गायब ही हो जाएगा।
मतलब हम मैंडेटरी कर रहे हैं, हम क्या कंपेल कर रहे हैं कि प्रोग्रामर को कि चेक करो कि, क्योंकि कभी कभी क्या होता है टाइप सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बैंक सेक्टर्स में, इसमें बहुत फाइनेंशियल सेक्टर्स में क्या होता है कि थोड़ा भी गड़बड़ हो गया ना, ये ऑब्जेक्ट का वो ऑब्जेक्ट में आपने एक्सेस कर लिया, कुछ नाम वाम सेट कर दिया तो प्रॉब्लम्स आएंगे। सो दैट्स व्हाई where we have to mandatorily see these kind of implementation। तो आपको वहां पे चेक करना कंपलसरी रहता है। चेक करने के लिए ये प्रोसीजर आई कंपेरेबल वाले इंटरफेस के थ्रू आपके जो सीनियर प्रोग्रामर जो रूल्स प्रोवाइड किया आपको ओबे करना पड़ेगा, देन ओनली इट विल वर्क। क्योंकि बैंक सेक्टर्स में इसमें क्या होता है फाइनेंशियली थोड़ा आपको काफी केयरफुली प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। अदरवाइज क्या होता है कि ये जो नेम है ना डॉग का नाम आपका ट्री नेम में चला जा सकता है। इसमें क्या है कभी कभी आपने मिस्टेकनली आपने वैल्यू प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे मैंने लैब्राडोर टाइप किया, यहाँ पे मैं चीता करके भी टाइप कर सकता हूँ। तो टाइप करने में क्या है ना, तो वो जब टाइप ऐसा कर लिया, अब हमने इसके पहले के एग्जाम्पल में तो हम नाम इसीलिए चेक कर रहे हैं कि वेदर द टाइप इज ऑफ दैट टाइप और नॉट, वेदर दिस टाइप ऑफ इज, अगर एनिमल का नाम उस टाइप का है कि चेक कर रहे हैं। क्योंकि डॉग नेम में चीता तो आएगा नहीं, जब आप उस क्लास के थ्रू अगर आप ऐसा असाइन कर रहे होंगे ना तो वहां पे चीता करके नहीं आएगा, वहां पे डॉग नेम ही जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, चेक करने के बाद प्रॉपरली है कि नहीं, चेक करने के बाद रिटर्न 1 आवर टू सेंड कर रहे हैं। नाउ क्लियर हुआ? अभी कोई एरर, अभी कोई इश्यू आपको दिख रहा है इसमें? ठीक है ये सर। देखो ये सिंपली आपको प्रोसेसिंग के ऊपर मैंने बताया, ठीक है। ये ऐसा ही बनाना कोई जरूरी नहीं है, सिंपली यहाँ तक का इम्पोर्टेंट है। टाइप चेक करो, अगर सेम टाइप है तो एरर नहीं आएगा, सेम टाइप नहीं है तो एरर आएगा। दैट इज व्हाट वी वांट टू कन्वे। ये इतना मैंडेटरली इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मैं 0 भी कर दूंगा, 1 भी कर दूंगा तो वैसे ही चलेगा, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट हियर। And why this is important? You are bound to check with this comparative. And why you are bound to check with this comparative? Because you have implemented this iComparable. So that's what the whole idea of interfaces. समझ में आया? Still any doubts? Yes. So understood? So we have seen today how to implement the interfaces, then how to explicitly call them if you got so many different interfaces which are having the same methods or members with the same name. Then we can call by exclusively providing their name. So that is what we call as explicit implementation. Otherwise जो भी हम करते हैं normally implicit होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को अगर आप इनिशियलाइज करके मेंबर को कॉल करेंगे तो implicit होता है by default. Otherwise explicit mode is also available. Then inheritance in the interface is also I have given the example, but generally हम इसको implement नहीं करेंगे because all the class A members will also be coming to you in the class B, and then you are going to have so many methods which need to be implemented, which is not required sometimes. So that's why inheritance in the interfaces थोड़ा हम avoid करेंगे, but the feature is available, feature available है, but इतना ज़्यादा यूज में नहीं आता वो आपके जनरल प्रोजेक्ट्स में। एंड देन ऑपरेटर ओवरलोडिंग यहाँ पे आएगा। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग बेसिक्स में आता है, इसमें जनरली इतना कुछ खास नहीं रहता है। एंड वी हैव सीन द आई डिस्पोजेबल आल्सो, एंड वी हैव सीन द आई कंपैरेबल। सो आई कंपैरेबल तभी लेंगे अब आप 2 या 4 ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करके आपको इवैल्यूएट करना है ना। कॉशियसली अगर आपको हर एक ऑब्जेक्ट का टाइप चेक करके कंपेयर करके एग्जिस्टिंग प्रीवियस टाइप के साथ if you want to move ahead, then only the comparable will be useful. Otherwise useful नहीं है तो आप comparable implement नहीं करेंगे, ठीक है। तो this becomes mandatory। अगर आप comparable करेंगे तो mandatory बन जाएगा, चेक करना, टाइप को चेक करना mandatory बन जाएगा। So कोई doubts अभी pending है क्या? So as Anirudh sir is actually is not going to take the lectures tomorrow and the day after tomorrow, Monday. तो एक्चुअली आपका कैसे चल रहा है कि थ्योरी कंप्लीट होने के बाद ही प्रैक्टिकल चल रहा है। सो जब तक ये इसका थ्योरी कंप्लीट नहीं होगा नेक्स्ट सेशन का, तो इसका प्रैक्टिकल हम स्टार्ट नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई
we are also going to see on again like when Anirudh sir is going to start that topic, है ना? जब ये सर start करेंगे तब हम actually इसका example check करेंगे. And meanwhile, today, tomorrow and the day on Monday, you will be having some assignments जो आपके जो regular time में आप लोग आ जाओ और उसमें practice करो, and you can complete the assignments in the meantime. So we will be having a theory practical session again when Anirudh sir is going to start the theory on this topic. Okay, because आपका theory होने के बाद ही हम practical ले सकते हैं. आपका काफी considerable theory classes के बाद अपना धीरे-धीरे practicals का हम as usual चला सकते हैं. Okay, so that's all for today. Any more doubts left, you can ask. Otherwise, we can conclude this session. Yes. Any doubts? No doubts? Sir. Yeah. So कोड भेज दीजिएगा बस. हाँ 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 ठीक है शेयर करता हूँ. ठीक है. Okay, so complete the assignments. Whoever not submitted, nearly 15 students have 15 to 20 students have not submitted yet. So try to complete as soon as possible because other assignments are also in line. So we will get you will get all those assignments. So one by one you have to complete in the deadlines. So we will meet again to when once Anirudh sir again takes the session. Until then, so keep practice. Okay, so. Thank you for participating in this session. We will meet again next week. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.